امن کا جو میسج ہے یا پیغام ہے امن کی بات کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے. یعنی آپ کا پرامن رہنا, آپ کا دوسرے کے لیے پازیٹیو رہنا, یہ ایک تھاٹ ہے. یہ جو مسکراہٹ ہے یہ بھی ایک لینگویج ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی دیار کسی دیس میں چلے جاؤ, زبان سارے سمجھتے ہیں مسکرانے کی. تو اسی طرح سے امن کی اور محبت کی بھی ایک زبان ہے, اور اس کو اگر آپ سپریڈ کرنا شروع کریں فضا کے اندر, فوکس پر کام, اپنی توجہ پر, اپنی صلاحیتوں پر, تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے کسی بھی ماحول میں کسی بھی طرح سے آپ ناکام نہیں ہو سکتے. آپ آگے آپ پروگریسو ہی رہیں گے. فوکسڈ ہوتے ہیں نا محسن صاحب, تو آپ کی موڈ بھی بہت مینٹین رہتا ہے. لیکن جب آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور آپ کو کہیں سے آپشن مل جاتی ہے نا, جی, تو پھر آپ کے ڈی ٹریک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, اور آپ کے پھر موڈ خراب ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. آپ اسٹیبل نہیں رہتے ہیں, اور پازیٹیو تو پھر بالکل بھی سوال ہی نہیں پیدا ہو. بالکل. تو اس ایسی سچویشن کے اندر آپ جتنا خود کو مصروف رکھیں گے, جتنا فوکسڈ رہیں گے, جتنی ذمہ داری آپ اپنے موڈ کی لیں گے, اپنی نیند کی لیں گے, اپنے پرسکون رہنے کی لیں گے, اتنے ہی جو آپ کی زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی. اپنے ملک کے ساتھ محبت ہونا کوئی بہت اچھی بات ہے, اور یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ رہتے ضرور ہیں لیکن اس کے لیے ایک جذبات بھی رکھتے ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات ہے کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, اور ابھی مس جہانہ بھی اس پہ بات کر رہی تھی کہ نیندیں اس وقت بہت سارے لوگوں کی خراب ہیں اور صحت کے مسائل آ رہے ہیں. اور دوسری سب سے جو اہم چیز ہے کہ یہ ساری جذباتی کیفیت ہے. دیکھیں, وار ہمیشہ ویپن سے ہی نہیں ہوتی ہے, وار آپ کی باتوں سے, آپ کے لہجوں سے. اچھا, یہ جو کچے کان والے بعض اوقات ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جلدی سے, اچھا دو چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی افواہ سنی تو ابھی اس کی کوئی تصدیق نہیں کی, نہ اس بارے میں کوئی ریلائبل سورسز سے, کوئی اوتھینٹک سورسز کو کوئی جانا پرکھا, جلدی سے اس کو آگے دو لوگوں کو بتا دیا, ان دو نے آگے 4 کو بتایا. اچھا, یہ جو کام ہے یہ بھی ہم نے نہیں کرنا. اسی طرح سے یہ جو یعنی ایک خبر کا دوسرے تک پہنچانا ہے, یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو خیالات ہیں ان کے بھی بچے اور پھر پوتے بھی ہوتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو ہر آن نئی شان کے ساتھ مہربان ہے. ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیوز سے تمام ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں محسن نواز, میں ہوں جہاں آرا, اور ساتھ ہمارے موجود ہیں سمیرہ افتخار. السلام علیکم. السلام علیکم. اور جہارا کی طرف سے بھی آپ سب کو سلام پہنچے. دیکھیں نا کسی کے حصے کا کام ہم کتنی جلدی کر بس آپ نے موقع ہی نہیں دیا مجھے سلام کا. محسن صاحب, اصل میں قوم اتنی پرجوش ہے نا کہ سلام بھی ایک دوسرے کے ہی ادا ہو رہے ہیں. ہاں, اور یہ جو اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے اور دوسرے حصے کا کام, اس میں سے بہت زیادہ یاد کون سا رہتا ہے؟ دوسرے کے حصے کا. دوسرے کے حصے کا کام. ناظرین, دوسرے کے حصے کا کام. الیکٹرا کا ٹی وی میرا ہوا. یہ ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے, لائے ہیں آپ کے لیے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز, جو کہ ہر سیٹرڈے کو آپ کے ساتھ ہم پریزنٹ کرتے ہیں دوپہر 1 سے 3 بجے تک. اور ولنگ ویز کا یہ شو دراصل ہمارا نہیں ہے, تو پھر یہاں یہ کس کا شو ہے؟ یہ تو ان سب کا شو ہے محسن صاحب, جو ہمیں کیمرے کے اس پار سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دنیا میں کہیں سے بھی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ شو تو ان سب کے لیے ہے نا, جس کو اسپیسیفکلی ہم محسن صاحب لے کے آتے ہیں. بالکل, اور آئیے گا شو پر شامل ہو جائیے گا. آج ہم نے جو باتیں کرنی ہیں باتیں بڑی خاص ہیں, اور عام طور پہ میں کہتا نہیں ہوں کہ آپ شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں وغیرہ وغیرہ, لیکن میرا خیال ہے کہ آج والی جو باتیں ہیں جو ہم نے پلان کی ہیں اس کے مطابق ان کو شیئر کرنے یا دوسروں تک پہنچانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی روٹینز کو سیٹ رکھ سکیں گے, کیونکہ جس طرح کا ماحول ہے تو ہماری توجہ تھوڑی کام سے ہٹی بھی ہوئی ہے. اور ہم اپنے جو سرکل آف کنسرن یا جہاں ہمارا انفلوئنس ہو سکتا ہے, جہاں ہمارا فوکس ہو سکتا ہے, وہاں سے ہٹ کے ہم ذرا زیادہ اپنی توجہ کو مبذول رکھے ہوئے ہیں ملکی حالات پر یا سیاسی حالات پر. جہاں جہاں آپ کا رول بنتا ہے وہاں تو بہترین ادا کرنا ہے,
پر غیر ضروری طور پہ ہم نے اپنے کام کو چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا. ہاں انگیج نہیں کر لینا خود کو غیر ضروری طور پہ. اچھا یہ بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے محسن صاحب کہ ہمارا رول کہاں کہاں پہ بنتا ہے. ایگزیکٹلی مطلب یہ بھی چیزیں جو ہے نا تھوڑی کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ بیسکلی بینگ یو نو سٹیزن, ہم پاکستانی سٹیزن, ہاؤ وی کین پرفارم آور رول پازیٹیولی. پاکستان سے ہم سب کو بہت پیار ہے, یہ پوری دنیا جانتی ہے. ہم پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ جذبات رکھتے ہیں. ہم اپنا بہترین رول ادا کرتے ہیں, ہم دنیا کو پازیٹیو اور اچھا میسج دیتے ہیں, ہم امن کی بات کرتے ہیں. یہ سب کچھ بالکل واضح ہے, آن ریکارڈ ہے. ہم میں سے جو کوئی بھی کئی دفعہ کچھ اینشیس ہو جاتے ہیں, بے چینی سی طبیعت میں آتی ہے. ظاہر ہے کہ خبروں میں ہر طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. تو آج ہم نے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ اپنے توجہ کو, فوکس کو ہٹا کے کوئی بے چین ہو جانا یا ایسے موضوع پر ہی پھر بات کرتے رہنا جو ہمارا موضوع نہیں ہے ڈائریکٹلی, یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. بالکل ایگزیکٹلی, آپ نے بہت اہم بات کی محسن صاحب کہ ڈائریکٹلی نہیں ہے. گو کہ یہ اس سے بڑھ کے دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری شان ہے, ہمارا ملک, ہماری آن ہے, ہمارے رہنے کی جو ایک مین ریزن ہے نا, اتنی خود مختاری, اتنی خوشی کے ساتھ اور آسانیاں ہیں جو زندگی میں, وہ صرف ہمارے اس وطن سے ہی یہ سب ممکن ہے. ہم اسی کے ساتھ ہیں, وطن ہمارے لیے ہے, ہم وطن کے لیے ہیں, مگر اس میں ہمارا خیال ہے کہ کنٹریبیوشن ہماری ایسی ہونی چاہیے جو کہ آسانیاں پیدا کرے دوسروں کے لیے, نہ کہ تکلیف کا باعث بن جائے. ایگزیکٹلی, اور لفاظی سے نکل کے پریکٹسز, بیسٹ پریکٹسز کو اپنانا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر بہت اچھے جذبات ہیں, بہت باصلاحیت لوگ ہیں, ماشاءاللہ بہت طاقتور ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے بالکل شانہ بشانہ پہنچ جانے کی تمام صلاحیتیں رکھتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس میں, لیکن یہ تو ثابت بھی ہو رہا ہے. یہ تو ثابت بھی ہو رہا ہے. لیکن اس سارے معاملے میں یعنی کہ جیسے کئی دفعہ ہم اوور تھنکنگ میں, پریشانی میں, زیادہ جذبات میں بیٹھ جاتے ہیں, جذبات میں, کیونکہ اس کے پیچھے کئی دفعہ کوئی سائیکولوجیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات کسی کی اپنی پرسنل لائف میں کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو جب کوئی خبروں کی طرف توجہ جاتی ہے تو آپ کے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو سکتی ہے. تو بے چینی نہیں پیدا ہونے دینی, اپنا بہترین رول ادا کرنا ہے. اچھا نیند کو جیسے کمپرومائز کر رہے ہیں لوگ بہت زیادہ, جو چیز میں بھی آبزرو کری ہوں محسن صاحب. اب 2-3 لوگوں سے جیسے میری بات ہوئی تو سب نے یہی کہا کہ نیند نہیں, کیونکہ ہماری پوری ہوئی تو نیند نہیں ہمارا. تو اگر آپ کی نیند ہی نہیں پوری ہوئی تو پھر خواب کیسے پورے ہوں گے؟ ہاں واہ واہ, بڑی خوبصورت بات ہے نا. اور خواب ہمارے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں محسن صاحب, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. جی, اور خوابوں میں سے ہی تو ایک خواب یہ بھی ہے کہ ہماری ایک آزاد خود مختار جو ہماری مملکت خدا داد ہے, ہم نے اس میں رہنا ہے, ہماری جنریشنز نے انجوائے کرنا ہے. تو جو نیند ہے نا وہ بھی پیسفل, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ بھی ایک خواب کی تعبیر ہے, یہ وطن ہمارا, یہ بھی ایک خواب کی تعبیر ہے. تو ہمارے ساتھ, ہمارے لیے بڑا باعث صد افتخار ہے سمیرہ افتخار کا ہمارے ساتھ بیٹھنا. سمیرہ کیا حال چال آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک سر. آپ ہماری باتیں چپ چاپ سن رہی ہیں, اس کی 2 ریزنز بتائیے. میں اس کے ریزن بالکل آپ کو بتاتی ہوں. جیسے آپ ایک تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ محبت ہونا کوئی بہت اچھی بات ہے, اور یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ رہتے ضرور ہیں لیکن اس کے لیے ایک جذبات بھی رکھتے ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات ہے کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, اور ابھی مس جہانہ بھی اس پہ بات کر رہی تھی کہ نیندیں اس وقت بہت سارے لوگوں کی خراب ہیں اور صحت کے مسائل آ رہے ہیں. اور دوسری سب سے جو اہم چیز ہے کہ یہ ساری جذباتی کیفیت ہے. دیکھیں وار ہمیشہ ویپن سے ہی نہیں ہوتی ہے, وار آپ کی باتوں سے, آپ کے لہجوں سے, اور بہت سارے ایسے سائن ہوتے ہیں جس سے وار ایک تصادم سا ہو جاتا ہے. اعصابی جنگ بھی ہے, اس پہ نفسیاتی جنگ بھی ہے, اور آج کل سب سے بڑی جنگ تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا مطلب الفاظ کی جنگ, الفاظ کی جنگ. اب آپ دیکھیں مطلب میں کچھ 1-2 میڈیا دیکھ رہی تھی جو ہماری کچھ رپورٹس بھی تھیں, تو لٹرلی کوئی اب جھوٹ سچ تو وی کانٹ, مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے نا, وی آر جسٹ اے لے مین, مگر اس میں کیونکہ جھوٹ تو ثابت ہو ہی جانا ہوتا ہے 12-14 گھنٹے کے بعد, اور 12-14 گھنٹے کے بعد پھر معذرت بھی آنی ہی ہوتی ہے کہ وہ معذرت چاہتے ہیں, جو ہے وہ معذرت بھی آنی ہوتی ہے, ثبوت بھی آنے ہوتے ہیں, ثبوت بھی آنے ہوتے ہیں, شرمندگی بھی جاتے ہیں. وہ جو انہوں نے جو ان کی طرف سے ہوئی باتیں جو کہ بڑی, بلکہ بعض اوقات تو وہ لوگ جس طرح سے خبریں دے رہے تھے, تو اب چونکہ جھوٹ کے سر بھی نہیں ہوتے اور پاؤں بھی نہیں ہوتے. میں تو یہاں پہ تھوڑا لائٹر نوٹ میں ایک بات بھی کہوں بھی, صبح جب میں سن رہی تھی نا, تو میں نے بھی ذرا شرارتاً ایک
जो एक और मुल्क है हमारा, मैंने कहा जरा उसका मीडिया भी अब थोड़ा सुना नाश्ता करते हुए, तो लिटरली थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि ना दोवां च होने असल गल केड़ी है, कोई तीजा पासा सुनना पड़ेगा नहीं, वो फिर बाद में परेशानी भी उनको हुई कि हो यानी मुबालगा राय की या झूठ बोलने की एक लिमिट होती है भाई, लिमिट होती है। वो भी तो जो ये जंग है उसमें अल्फाज की जंग भी शामिल है ना, क्योंकि ये सारा नफ्सियाती दबाव ही तो है। एग्जैक्टली। यानी आप देखें कि जब आज के दौर में ये जैसे मीडिया वॉर कहते जी हैं, जी जी, तो कोशिश उनकी ये थी कि किसी तरीके से ये नशरियात चूंकि लाइव चल रही हैं, तो इन लोगों को ये इस तरह का मैसेज दिया जाए कि जी ये मतलब बस बस हाँ, तो मतलब कभी तो ये भी शक हुआ, जैसे आज मोहसिन साहब, अब हमारी कौम इतनी जिंदा दिल है ना, आई रियली अप्रिशिएट। बात भी आज हमने यही करनी है कि हमने पॉजिटिव ही रहना है। जो भी आपने बड़ी खूबसूरत लाइव शो से पहले जो आपने डिस्कशन की ना मोहसिन साहब, उस पे भी अभी आप रोशनी डालेंगे दोबारा ब्रेक के बाद, लेकिन मैं एक चीज उसमें ऐड करूं कि हमारी कौम की खूबसूरती ये भी है कि बड़े जिंदा दिल है, बहुत ज्यादा जिंदा दिल है और मुत्तहिद, जो इसमें से एक ब्लेसिंग निकली है ना, बहुत शानदार। मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमारे ऊपर हम जो आपस में बिखरे हुए सोच, हम सियासी सतह पे कई दफा समाजी तौर पे कई दफा हमारे आपस में ना सोचें मुख्तलिफ भी होती हैं, लेकिन मुत्तहिद कर दिया इस सारे माहौल ने। और आप देखें कि हर फोरम पर इत्तेहाद की बात हो रही है, तो ये तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसके नतीजा में एक कौम जो है इस तरह से मुत्तहिद, यही तो पाकिस्तान की खूबसूरती ये है मोहसिन साहब। और हमें बेसिकली इस खूबसूरती को कायम भी रखना है ना जी, इट कैन नॉट बी फॉर टाइम बीइंग, बेसिकली इट्स फॉर परमानेंट। बिल्कुल। और ये जब हम इसे कायम रखेंगे तो ही हम इसको फिर हमेशा के लिए अपने मुल्क को फायदा भी दे सकते, क्योंकि बेजार हैं जो जज्बे हुब्बुल वतनी से, वो लोग किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। जिस घर में आप रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस तरह हमें अपने घर से प्यार होता है, इसी तरह हमें अपने वतन से बहुत प्यार है। और इस प्यार का इजहार करने का जो तरीका है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं, अपना बेहतरीन रोल निभाना। अपना बेहतरीन रोल कैसे? आप कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, आप अफवाज पाकिस्तान के हमारे सिपह सालार हैं, आप किसी भी फॉरम पर काम कर रहे हैं, तो आप अगर अपने काम के हवाले से अपना बेहतरीन रोल अदा करते रहेंगे तो इसमें ताज़ीम भी है, तकरीम भी है, सलाम भी है आपको, क्योंकि यही तो है, यही तो है अपनापन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो समीरा आप बताइए कि ओवरऑल जो है, जैसे हम बिलिंग वेज में काम करते हैं तो हम लोगों की इमोशनल हीलिंग पर, इमोशनल चैनलाइजेशन पर काम कर रहे होते हैं। क्या देखा जब हम बात करते हैं, शुरू में लोगों के अंदर कई दफा बेचैनी मैंने भी देखी, लेकिन फिर जल्द ही जब आप उनके साथ थोड़ी बात करते हैं तो इमोशंस जो हैं वो चैनलाइज होने लगते हैं, पॉजिटिविटी पैदा होने लगती है, स्ट्रेस मैनेज होने लगता है। जी जी सर, उसका सबसे मेन जो साइन होता है वो ये होता है कि वो पर्सन जब ये पहचानना शुरू कर देता है कि चेंज बाहर से नहीं अंदर से आता है, क्योंकि ये नज़रियात की तब्दीली होती है। और जैसे ही एक पर्सन समझ आता है कि चेंज बाहर से शुरू ही तब होगा जब आप अंदर से चेंज होंगे। जैसे आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइकोलॉजिस्ट है, और अगर वो अपने रोल को ही इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू कर दे तो ये बहुत बड़ा साइन होता है पॉजिटिविटी का। लेकिन अगर उसके दरमियान में कोई जज्बात हाइल हो जाते हैं, कोई बेचैनी आती है या कोई स्ट्रेस आता है, तो वो सबसे बहुत सारे अपने जो रोल अदा कर रहे होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं, बल्कि वो उस फिक्र में लग जाते हैं या उस जज्बात के पीछे लग जाते हैं जो उसको अंदर से तंग कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो आप चेंज लाते हैं वो इनर से लाते हैं, जो कि आउटर साइड की तरफ आता है। और शुरुआत होती है एक नज़रियात से, एक पैराडाइम से, जो कि आपको एक नए ख्याल को चेंज करके ही मिल सकता है। उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंसर्न को पहचानें। जैसे आपने शुरू में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सर्कल ऑफ कंसर्न होता है और इन्फ्लुएंस होता है। कंसर्न वो होता है जिसके अंदर हम अपने इख्तियारात हमारे पास नहीं होते हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है और हमने किसी जगह पे पहुंचना है और वो बहुत अहम है, या ट्रैफिक जैम है या कोई इस तरह के मसले हैं, लेकिन हमारा इख्तियार उस जगह पे नहीं चल रहा, तो उस चीज़ को भी हमने पहचानना है। और दूसरी साइड ये होती है कि वो जगह जहाँ हमारा इख्तियार चल सकता है जी। अब जब हम अपने इख्तियार को समझेंगे, अपने उस जज्बात को एक सही जगह इस्तेमाल करेंगे कि हम अपने रोल को पहचाने, और एक लिमिटेशन होती है हर पर्सन की, तो अपनी लिमिटेशन को पहचाने और उसी को इस्तेमाल करते हुए वो एक हेल्प कर सकते हैं सबसे पहले खुद की, फिर स्टेट लेवल पे।
تو یہ اسی طرح چینج ہونے والا سائن ہوتا ہے کہ شروع ہم نے اندر سے کرنا ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر باہر کوئی پرابلم آ رہی ہے یا کوئی اس طرح کے مسئلے چل رہے ہیں اسٹیٹ لیول پر, تو آپ اپنے جذبات کو سب سے پہلے سمجھیں کہ یہ ایسا کام ہے جس پر آپ ایک لمیٹیشن کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. جیسے بہت ساری فیملیز کو میں نے دیکھا ہے وہ پریشان ہو رہی ہیں کہ اب باہر کیا ہوگا, ہمارے بچوں کے اسکول بند ہو گئے ہیں, ایگزامس تھے, یا پھر کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے, اگر انہیں اس سچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہے, تو فیملیز کو یا اس پرسن کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو سب سے پہلے پہچانے, کہ سب سے پہلے اس کو خود مضبوط رہنا ہے. ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ جس طرح کی وفاداری کر سکتے ہیں ہم اس پر اپنا رول ادا ضرور کریں, لیکن اس طرح کا وہ رول نہ ہو کہ ہم خود کمزور پڑ جائیں. ایگزیکٹلی. اور کتنی خوبصورت آپ نے باتیں کی کہ وہ مطلب جو اپنا رول ہے وہ ہمارا اتنا مضبوط اور اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہماری سوچیں ہیں یہ ایک زبردست انرجی کا سورس ہے نا. تو جس طرف آپ جس انداز سے سپریڈ کریں گے ویسی فضا بنتی جائے گی. بالکل ایسے. تو اپنی فضا کو اچھا پازیٹیو رکھنا سب سے بڑی آپ کی توانائی ہے. اس وقت سب سے بڑی طاقت جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے اپنے ہر انڈیویجول کے پاس ہے, وہ ہماری پازیٹیوٹی کی, ایموشنز کی. مطلب میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے زیادہ اچھی خوبصورت بات کیا ہوگی, اور یہ سارے لوگ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں وہ اس بات کو سنیں بھی اور آگے بھی ضرور شیئر کریں کہ اس سے زیادہ بڑا کوئی اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں. ہم نے امن کی, اطمینان اور محبت کی بات کی. ہم نے پوری طرح سے اس خطے کے حوالے سے ایک ذمہ داری والے سارے بیانات دیے. ہمارے تمام انڈیویجولز نے بھی, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس حمایت میں ہو کہ کوئی فساد ہو, خطے میں بدامنی ہو, کچھ بھی. لیکن اگر ظاہر ہے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں اور ادارے اپنا بہترین کام کر رہے ہیں. بات ہی یہ ہے نا محسن صاحب کے جو ادارے موجود ہیں ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں, وہ جب ہم خود کام ہوں گے, اپنے جذبات پہ کام کریں گے, اپنی اپنی ذمہ داری لیں گے, تو آبویسلی وہ بھی اپنا کام بخوبی انجام دے سکیں گے. ہاں میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا شو ہے, چونکہ ادھر بھی دیکھے جاتے ہیں نا ہمارے شو, بلکہ ادھر زیادہ دیکھے جاتے ہیں, تو ادھر والوں کو یہ شو دیکھ کے یہ جو ہمارا ایک یہاں ابھی جب میں آ رہا تھا آفس تو سڑکوں پہ بالکل نارمل ساری صورتحال تھی. جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان لوگوں کے حوالے سے بھی خیر و عافیت سب کچھ. لیکن اگر مطلب لاسٹ نائٹ وی ور ایٹ ڈنر اور وی کیم ویری لیٹ, مطلب ہم کوئی 10 بجے گھر آئے اور ایوری تھنگ واز ویری نارمل. میں مطلب زندگی میں کچھ بھی ہم سنتے تھے, میں وہی سوچ رہی ہوں کہ شاید یہ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات بھی تھوڑی دیر پہلے کی کہ اس سے ہمیں ایز نیشن یونائٹ ہونے کا بڑا موقع ملا. ادروائز تو دیکھیں ہم تو اپنے ہی بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے تھے نا, چھوٹی چھوٹی سی پیٹی پالیٹکس تھی, تو اس سے پوری قوم, سبھی لوگ رات جو تھے وہ اپنی اپنی اس میں مصروف تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں, بلکہ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا لوگوں کا کہ اب کچھ دن بعد کام کریں گے, نہیں یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس پہ بیسک ہمارا میسج بھی یہی ہوگا کہ ہمارا جو کامیابی جو ہے نا کسی بھی نیشن کی, وہ اسی میں ہی ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ ادھار نہیں ہونا چاہیے. ادھار تو ویسے نہیں ہونا چاہیے, کام بھی ادھار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہی تو دوسرا چاہتا ہے. وہی چاہتا ہے آپ بخلا جائیں, آپ کام چھوڑ دیں, آپ گھروں میں بیٹھ جائیں, آپ پریشان ہو جائیں, آپ نیگیٹو, آپ کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو جناب والا ان سوچوں سے ڈس فنکشنلٹی پیدا ہوتی ہے. ہم نے فنکشنل رہنا ہے, اور الحمدللہ اب تک جیسے میری جتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے, بلکہ یہ میں نے ایک چیز ضرور دیکھی کہ پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں نا وہ ضرور میسج کر کے کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا حالات ہیں, کیسے ہیں آپ لوگ, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ان کا میڈیا کنسرن ہے. جی بالکل. اچھا کنسرن بھی ہوتا ہے, خیر وہ بھی اچھا لگتا ہے, خیریت پوچھتا ہے, تو
वो भी ठीक है, लेकिन मैं अभी जैसे बता रही थी ना कि जिंदा दिल कौम है मोहसिन साहब, जी तो उसमें बहुत सारी ऐसी मीम्स मेरी नजर से गुजरी जिसपे मैं बड़ा एंजॉय भी करी थी। जी उसमें उन्होंने लिखा था कि मतलब हमसाए से, हमारे जो हमसाया मुल्क है वहां से तो ऐसी खबरें भी आ रही, अब अगर खबरों पे जाएं और हाँ। अगर पैनिक होने पे हाँ, जाएं हाँ, और वैसे अगर वैसे उसे खबर कहना भी जो है ना वो थोड़ा अजीब सा लगता प्रोपेगेंडा है। कह लें फिर हम उसको, It's a right- अप्रोप्रिएट लफ्ज तो यही है। प्रोपेगेंडा ना, और साइकोलॉजी, प्रोपेगेंडा में एक साइकोलॉजी का भी है मोहसिन साहब। पॉलिटिकल हाँ, साइकोलॉजी। कि जिसमें वो कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसमें वो कहते हैं कि जो न्यूज़ है ना एक्चुअल, उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा एट टाइम जोर पकड़ लेता है। तो हमारी जिंदा दिल कौम की खूबसूरती ये है कि वो प्रोपेगेंडा को इतनी खूबसूरती से हंसी मजाक में वो लेके आते हैं कि हम रियलाइज कर लेते हैं। जैसे एक साहब ने लिखा हुआ था हाँ हाँ कि जितने बुरे तरीके से लाहौर पे कब्जा हुआ है, हाँ तो मैं तो इस टाइम कहीं बाहर के मुल्क में बैठ के ये पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया, जी। क्योंकि और जब मैं आ रही थी अभी ऑफिस में, क्योंकि लाइव शो ऑफिस से ही हो रहा है, तो मतलब ट्रैफिक रवां दवां थी जी, और जी। रौनक और सब कुछ। पार्क में भी उसी तरह गहमी गहमी थी। सुबह वॉक पे भी मैं गई तो पार्क में बड़ी गहमा गहमी थी। तो माशाल्लाह ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। और पाकिस्तान में इस टाइम भी मामूलाती ज़िंदगी जो है ना मोहसिन साहब, जी वो जी। रवां दवां है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैं आपको बताऊं कि बल्कि इसके अंदर यूं समझ लीजिए कि जो यानी मौसर ज़राए हैं जी जी, और जो Authentic sources। ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जी। वहां से जो खबरें हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बरक्स हैं, हाँ बरक्स हैं। हाँ, पाकिस्तान That's की totally opposite। इंतहाई शानदार मजबूती की खबरें हैं एग्जैक्टली, और बिल्कुल। पाकिस्तान के बहुत ही मुस्तहकम होने की, बल्कि इसके अंदर एक ये भी कि हम सिर्फ कहते नहीं है, वही बात है कि शायद हम लोग उतना ज्यादा वावेला प्रोपेगेंडा रौला शौला हम नहीं नहीं डालते, करते, हम बल्कि असल काम पे असल काम। आई रियली अप्रिशिएट मोहसिन साहब, आई रियली अप्रिशिएट कि जिस बुर्दबारी से पाकिस्तानी फौज ने मुजाहरा किया ना, बहुत उम्दा। बिल्कुल जज्बाती नहीं हुए, जी। बिल्कुल उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, बिल्कुल वो रिएक्टिव नहीं हुए। सोच समझ के बहुत सोच समझ के उन्होंने हाँ, पूरा मौका देने के बाद हाँ, फिर उन्होंने कुछ मैं जिसे कहूंगी ना, हाँ, मामूली सी जवाबी कार्रवाई हाँ, की। अभी तो मामूली सी पर मामूली सी। अभी तो मामूली सी पर Inverted उनके ये commas हालात में। हैं जी। इन्वर्टेड कॉमर्स में मामूली सी है। अच्छा, चाहते ना चाहते हुए भी हम जंगी सूरत-ए-हाल पे चले जाते नहीं, हैं। हाँ, लेकिन ये कि ये सारी बातें चूंकि हो रही हो रही हैं ना। तो इनके बारे में मौकिफ अपना दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है। हाँ। सो काम जो है और हमारी बातचीत का बेसिक मोहसिन साहब, सॉरी टू कट यू, जी। हमारी बातचीत का बेसिक मकसद भी ये है कि देखें हम भी डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, हम हाँ। भी हर सूरत-ए-हाल से आगाह हैं। और लेकिन हम काम पर हैं, ये लेकिन हमारी हम- ड्यूटी थी आपसे मिलना। एग्जैक्टली, हम बिल्कुल इस काम पे भी हैं। इसके बाद हमारे रूटीन के काम भी होंगे, मॉर्निंग के जो काम है वो भी होंगे। और मतलब ये चीज इफेक्ट नहीं हो रही है हमारे मूड से, आपको कहीं नहीं लगेगा कि मूड, हमारी नींद से आपको नहीं लगेगा। तो असल मैसेज तो हम ये देना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली और ये जो असल मैसेज है इसको आप भी ज्वाइन कर रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज लाहौर के विलिंग वेज स्टूडियो से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है हर हफ्ते को दोपहर 1 से 3 बजे तक, जिसमें मैं होता हूँ और मेरे साथ विशाल नहीं बल्कि जहां आ रहा होती है। जी 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 जी, मोहसिन जी, साहब, जी। ये मुझे लगता है एक जंग तो विशाल पे भी होनी और आज हमारे दरमियान समीरा इफ्तिखार है। जी। अच्छा, समीरा इफ्तिखार ने जो जितनी फोकस्ड किस्म की बात की है, बारिश की बड़ी मिसाल जो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बात की समीरा। हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल भी हैं जी। और मुझे बातों से लग रहा है कि नींद इनकी पूरी है। जी वाह। जी हाँ, नींद की आपने खाब बात भी की। पूरी है आपकी? बिल्कुल, ख्वाब भी मेरे पूरे हैं और नींद भी मेरी पूरी है। वाह, जबरदस्त बात है। तो हम एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। तो आप अपने कमेंट्स के साथ आइएगा, बताइएगा आपका कामकाज कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे हैं और सोचने के जाविये किस तरफ हैं पाकिस्तान की इस खूबसूरत कौम को, जिसके अंदर जज्बात को जल्दी से बहुत अच्छी डायरेक्शन दी जा सकती है। मैंने देखा है कि पाकिस्तानियों में बहुत ही शानदार पोटेंशियल है कि वो अपने जज्बात को जज्बाती होते हैं, पर फिर उनके जज्बात को कोई डायरेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छे मुस्तहकम होके जल्दी से सीखने के अमल पर भी चले जाते हैं। अपना अपना तजर्बा है। मेरा तजर्बा तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा है जितने लोगों से मिलता हूँ। तो ब्रेक की बात हो रही थी, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और आपसे मजीद बातचीत करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में मोहसिन नवाज हूँ और मैं हूँ जहां आरा। समीरा इफ्तिखार हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और हम सब आपको कैसे लग रहे हैं, यानी मेरा मतलब है कि मूड मिजाज के लिहाज से कैसे हैं, वो जो अभी आपने बात की थी। एनर्जीज के हिसाब से कैसे हैं, मोटिवेशन के हिसाब से कैसे हैं, और आपने हमें ये भी बताना है
कमेंट्स के थ्रू मोहसिन साहब जी हमें आप सबने बताना कि है पहले तो कि हमने अपना हाल आपके सामने रखा, अब आप बताइए आप कैसे हैं? आप कैसे, आपकी मोटिवेशन कैसी है और कौन सी बात है जो आपको परेशानी, वैसे ये मैसेज तो हम हर शो में देते हैं कि कौन सी बात है जो आपको परेशान की देती है, मगर आज के शो में तो अपने खास तौर पे बताना है ताकि हम आपको बताएं कि परेशानी जो है वो सोल्यूशन नहीं है किसी भी मसले का, और वासिफ साहब ने क्या खूबसूरत बात की है कि परेशानी जो है वो हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती है, जन्म लेती है। बिल्कुल ठीक मोहसिन साहब, कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। जी 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 और लास्ट टाइम ये हुआ था क्योंकि इट वाज वेरी पावर शो, लास्ट टाइम हमारा कमेंट्स तो हो ही नहीं सके थे जी, हमारे, जी। अगर आपको याद हो तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कपड़ों की बातें होती रही थी। कपड़ों की बातें होती रही और कपड़ों में भी फिर जूतों की बातें भी आ गई थी बीच जी में उसमें। जी जी अच्छा जी, सुल्तान साकिब बलोच साहब कह रही हैं कि खूबसूरत आगाज। बहुत शुक्रिया सुल्तान। मलक बिलाल अहमद कह रही हैं हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत आगाज। बहुत शुक्रिया मलिक बिलाल अहमद। सुल्तान साकिब साहब फिर से कह रही हैं कि रातें जागते रहोगे तो दिन के काम अधूरे होंगे, वाह नींद पूरी नहीं होगी तो ख्वाब कैसे पूरे होंगे। अरे वाह 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 वाह। सुल्तान साहब जो है ना सुल्तान साहब ये आपने मेरी वाली बात जो है ना वैसे उसका शेर उसको शेरी रूप अपनी दिया है। शेरी अंदाज में बयान किया है जिसपे कि आपको दाद बनती है आपके लिए। देखिए मोहसिन साहब कितने कॉम्पिटेंट है हमारे जी। जो अवाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो अवाम भी नहीं, ये तो खवास में है। खवास सुल्तान में। साकिब बलोच। अच्छा जी, आफिया नसीम साहबा कह रही हैं कि व्हाट्स द टॉपिक। आफिया टॉपिक यही है कि कैसे हम अपने आप को मस्बत रख सकते हैं। और क्या आपकी रूटीन्स नॉर्मल हैं? क्या आप अपने एजेंडा से हटे हुए तो नहीं? जी अगर जी। ऐसा है तो जायजा ले लें और अपने फोकस को कहाँ रखना है, जी। जहाँ इख्तियार है वहां रखना है। अगर ऐसा ही है तो मुबारक हो, और अगर आपका फोकस हटा हुआ है तो उसको हमने अपनी जगह पे दुरुस्त करना है। आप हमसे मदद ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी टॉपिक है कि क्या आपकी नींद पूरी है, सो रहे हैं अच्छे से, आप खा पी रहे हैं, आप बिला वजह की सोचिए परेशान तो नहीं कर रही, ये भी तो है ना मोहसिन साहब बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अदनान गफूर साहब कह रही हैं कि ऑल टाइम फेवरेट शो। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। अमरीन अफजाल अफजाल रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत शुक्रिया अमरीन। और कहती क्या है? कह रही है वंडरफुल प्रोग्राम विद द ब्रिलियंट पीपल। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, उस्मा लतीफ साहब कह रही हैं वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोडक्टिव मैसेज टू योर पेशेंट्स टू। अब बहुत शुक्रिया उज़मा आपका। उज़मा साहब बड़ी ख़ास है। अच्छा जी। और ये इस वक्त जो इन्होंने बात कही है कि हमारे पेशेंट्स के लिए भी, जो हमारे ज़ेर इलाज जी। हैं, उनके लिए भी, फैमिलीज के लिए, ये बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज है। उज़मा साहबा बड़ी जहाँ दीदा शख्सियत है। आपने वाकई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। जी क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो तो सुपरवाइज्ड होते हैं ना बाय फैमिलीज, तो फैमिली मेंबर्स अगर स्टेबल होंगे, पॉजिटिव होंगे, रिलैक्स होंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट जो हैं वो सेफ हैंड्स में होंगे। एग्जैक्टली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पेशेंट्स पे भी काम करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां, जैसे प्रोग्राम के आगाज में ये था कि क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज तो हम कौन सा काम करते हैं जो हमारी जिम्मेदारी नहीं होता। जी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे घर बन रहा होता है ना मोहसिन साहब, जी एक लतीफा भी है कि जब घर बन रहा हो ना, खासतौर पे लेंटर पड़ रहा हो, जी तो बड़ी आवाम इकट्ठी हुई होती है बाहर। जी जी। और और लेंटर खुलने पर फिर देख भी शायद या कुछ देख, वो तो चले एक अच्छी है ना कि देख, मुझे बड़ा होता है जो कि देख शेख बांट रही हो ना। ठीक। मैं भी कहती हूँ कि शायद कोई ऑफर मारी दे, मगर अब दौर ही चेंज हो गया है। तो उसमें मुझसे जब लेंटर पड़ा होता है ना, आवाम इकट्ठी होती है। जी अच्छा, कोई काम नहीं होता उनका, भाई सही। लेंटर लेबर डाल रही है, घर वाला लुक आफ्टर कर रहा है उसको, हाँ। आवाम मैं भी कोल खड़ी होके कह रही हूँ लगता है बजरी थोड़ जाती है। तो उसमें ये है कि हमने ये वाला रोल नहीं लेना जी कि जिसमें हम परेशान होके बजरी थोड़ेगी कि बदेगी। जी एक्चुअली जिनकी जिम्मेदारी है उनको पता है कि कितना मसाला कहाँ डालना है। वाह, मैं कहता हूँ कि ये तो इन्वर्टेड का मसले है। आप समझ गए ना उसी साहब? हाँ जी हाँ जी हाँ कि जी। कितना मसाला, कितना मसाला कहाँ डालना है, मतलब रेत सीमेंट का कितना और पड़ा और पीछे जखीरा कितना है, जखीरा कितना है, और हाँ, उनको पता हाँ, है। हाँ। तो आपके और ये भी कि आगे अगर मसाला ज्यादा लग गया हाँ तो, हाँ, तो चुनौती कहाँ पे कितनी करनी। तो उसमें ये, और चेतावनी कितनी दी, हाँ, और बताना कितना है, बताना कितना यानी है, यानी देखे ना कि दिखाना कितना ज्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करनी। नहीं नॉट। और इसमें तो हमारी कौम वैसे ही बहुत मास्टर है। जी जी तो चेतावनी कहाँ देनी है और चेतावनी कहाँ देनी है, तो ये जिनका काम है उन्हीं को साजे। हाँ
ہمارا یہ کام ہرگز نہیں ہے جی جی کہ ہم کہیں کہ فائن تسی اے میزائل صحیح فائر نہیں کیتا. میرے خیال ہے ہم دنیا کو یہ سکھا بھی سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں کیسے رہا جا سکتا ہے, اس طرح کی سچویشنز کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے. جی بالکل, ہمیں ہی دیکھ کے آپ دیکھ لیں گے کیسا ڈیل کیا جا رہا ہے. جی مطلب آپ شاید میرا خیال ہے یہ بھی محسن صاحب ایک ڈیپ ڈاؤن کی بہت ہی ایک اچھی سی فیلنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ وی آر یونائٹ الحمدللہ, وی آر ان اے سیف ہینڈز الحمدللہ. جی جی اور اس میں یہ ہے کہ وی آر ایٹ رائٹ بالکل سائڈ پہ. بالکل کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم نے پورے سے پورا چیزوں کو مینج کیا, کوشش کی ہر ممکن. جی اور باقی یہ ہے کہ جو وہی بات اکثر ڈاکٹر صداقت اکثر بات کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے شوز میں, کہ پھر بھی جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے نا مسائل حل کرنے کا وہ ہے بات چیت کرنا. مگر جی 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 مگر بات چیت جو ہے وہ تو تبھی ممکن ہے نا محسن صاحب اگر آپ بھی تیار ہوں گے صحیح بات اور ہے, میں بھی تیار ہوں گی, دونوں پارٹیوں کے تیار دونوں پارٹیز تیار ہوں گی. ادروائز تو پھر تو یہی ہوگا کہ اگر میرے پاس مسالہ پورا ہے تو میں تو چتاونی پھر دے آؤں گی. دوسری بات یہ کہ یہ سارا کچھ کر کے بھی پھر بھی ڈائلاگ ہی ہے, پھر بھی مطلب سب کچھ کر کے بھی ڈائلاگ ہی ہے. اب بڑوں کو ڈالنے کا کیا فائدہ بھائی, خود میں مل بیٹھ کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. ہم تو بینگ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اس چیز پہ بہت زور دیتے ہیں کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے. اور ویسے میں آپ سے بتاؤں کہ وہاں کے جو سیانے ہیں, جی یعنی سرحد پار کے وہ لوگ جو کہ سمجھدار ہیں, سیانے جو ہمیں فالو بھی کافی کرتے ہیں, تو وہ بار بار اس بات کا اعادہ بھی کرتے ہیں, اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ جیسے آپ ہمارے اس سارے کام سے بہت سیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو اس بات کا بھی تو ایک بڑا اطمینان ہے کہ الحمدللہ جیسے ہم پاکستان کی مینٹل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ سائیکیٹرک النیسز, ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ کی سب سے بڑی پائنیئر آرگنائزیشن 50 ایئرز سے, اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے ڈاکٹر صداقت علی کی زیر قیادت یہ ساری جو ٹیم کام کر رہی ہے, کتنا زبردست. تو اگر ہمارا ایک ادارہ, ایک آرگنائزیشن اتنے سارے لوگوں پر اپنا ایک انفلوئنشل رول رکھ سکتی ہے جس میں ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور اگر آپ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر ہمارے مختلف فورمز پہ جائیں تو یہ تعداد آپ کو ملینز میں نظر آتی ہے جو اس کام کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, مسائل شیئر کرتے ہیں. there are so many emails محسن صاحب جو ہمسایہ ملک سے آتی ہیں ہمیں, تو یہ تو ایک مسائل ہیں. بالکل یہ ایک آرگنائزیشن ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی. اچھا, اسی طرح سے بہت ممکن ہے کہ اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی کوئی آرگنائزیشن رن کرتے ہوں. بہت سارے سی ای اوز ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے, جو اپنی کافی 2,000 3,000 امپلائیز کے ساتھ. تو یہ ایکچولی ایک کافی بڑا آپ کا نیٹ ورک کا کنیکشن جو ہے نا, وہ لوگوں کے لیے ایک اسٹرانگ میسج کا سبب بن سکتا ہے اپنی بہترین سوچوں کو اپنی پریکٹسز میں شامل کر کے. تو اگر ہم دیکھیں کہ جیسے میرے پاس میرے اسی فون پر جو میرے ہاتھ میں ہے, وہاں سے بہت سارے تعریفی میسیجز آتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات کوئی ایسی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے, جیسے مجھے اور آپ کو تو یہ چیز کلیئر ہے کہ اس وقت ہم پہ جو یہ جنگ مسلط کی گئی اس کے پیچھے کیا سیاسی مقاصد تھے. یعنی اگر نفسیاتی جائزہ لیا جائے تو وہاں کا نفسیاتی جائزہ یہ بنتا ہے کہ مطلب اب تو انہیں آرام کرنا چاہیے تھا. جی جو اس وقت یعنی فیصلوں کی منصب پہ بیٹھ کے جس سے پورے خطے کا من خراب ہوا اور کروڑوں لوگوں کی زندگیوں, تو اس بڑھاپے میں جو صاحب ہیں وہ جو ان کے بڑے ہیں ان کو تو آرام کی ضرورت ہے. اور جبکہ آپ کسی ایسی پوزیشن پہ ہوں اور وہاں سے, تو یہ تو پھر اور وہاں کی عوام کو بھی اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کیا ہے. اور اگر عوام کو اندازہ ہے نا, یہ جو ہمارا بیسک آج کا ہے بھی بات چیت کا وجہ کہ ہم مثبت پیغام دیں گے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا میکسیمم رول جو پلے کر سکتے ہیں دونوں سائڈ سے, وہ زیادہ یہ ہے کہ کیسے ہم خود کو پرسکون رکھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امن کا جو میسج ہے یا پیغام ہے, امن کی بات کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے. یعنی آپ کا پرامن رہنا, آپ کا دوسرے کے لیے پازیٹیو رہنا, یہ ایک تھاٹ ہے. یہ جو مسکراہٹ ہے یہ بھی ایک لینگویج ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی دیار کسی دیس میں چلے جاؤ, زبان سارے سمجھتے ہیں مسکرانے کی,
तो इसी तरह से अमन की और मोहब्बत की भी एक ज़बान है, और इसको अगर आप स्प्रेड करना शुरू करें फ़ज़ा के अंदर, फोकस पर काम, अपनी तवज्जो पर, अपनी सलाहियतों पर, तो मेरा ये ख्याल है कि दुनिया के किसी भी माहौल में किसी भी तरह से आप नाकाम नहीं हो सकते। आप आगे आप प्रोग्रेसिव ही रहेंगे। जी समीरा, आपको हमने अपने साथ शो में बिठाया जी, तो जी। है, पर हम अपने ख्यालात का इजहार ज्यादा कर रहे ये हैं। समीरा एक्चुअली देखें आप, जी और अगर हम ये कहें ना कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमने क्या बात करनी है, ये भी हमारा जोश जज्बा वलवला है और इस पे कि कोई शक ही हम नहीं एक है। दूसरे को खामोशी कराने पे होते हैं कि बस मेरी बात मुकम्मल हो जाए। नहीं नहीं, असल में आपकी बात इतनी ज़बरदस्त थी और मैं इंजॉय कर रही थी कि आप कितनी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से लिंक करके बात कर रहे हैं। देखें, जब मसले आते हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें कंपैरिजन और कंपटीशन बहुत हो तो मसाइल बढ़ते हैं। जैसे अगर हम इमोशनल, हमारा जो बैंक अकाउंट है या ट्रांजैक्शन जो हो रही होती है, अब उसी के अंदर ही अगर सारी बातचीत हमारी देखी जाए तो वो यही है जिसके अंदर हम अपने जज्बात सर्व कर रहे होते हैं किसी ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन पर जो कहीं ना कहीं किसी कंपैरिजन या कंपटीशन की रीज़न होती है। हमेशा पर्सनल एक्सीलेंस एक ऐसा पर्सनल एक्सीलेंस से ही आप अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं आपकी अपनी ज़ात से। चेंज हमेशा अंदर से आता है, ये हमने जैसे पहले बात की, लेकिन उसके लिए आपको इस बारे में सोचना होगा, और एक सोच ही होती है जो आपके एक्शन को चेंज करने की तरफ ला सकती है। अब इसी के अंदर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं और या सीख भी सकते हैं सीख हम। भी सकते हैं। मतलब अगर चेंज लाना आपको मुश्किल लग रहा है कि कैसे मैं चेंज, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चाहता तो हूँ चेंज होना, मगर मुझे पता नहीं हाउ टू चेंज माई सेल्फ। तो बिल्कुल। उसमें जैसे अभी ये बात पर्सनल एक्सीलेंस की कर रही हैं, हाँ जी। जी। तो पर्सनल एक्सीलेंस का जो आगाज है, सबसे पहले तो अपने आप को रिसेप्टिव बना लेना है। Receptive कि बनाना आप जैसे इसका पहला कदम क्या होगा, अगर आप किसी एंजाइटी बेचैनी में हैं, तो डीप ब्रीदिंग से, माइंडफुलनेस से, जी, जी, और ग्राउंड रियलिटी टेक्निक्स के साथ बिल्कुल। आप अपने आप को सबसे पहले तो इमोशनली काम कर लेंगे। जी अच्छा, फिर आप व्हाट टू डू नेक्स्ट पर चले जाएंगे, हाँ जी और इस तरह से आप अपने एजेंडा पर काम करते करते अपने परफॉर्मेंस से, अपने काम से कनेक्ट हो जाएंगे। और अर्जेंट इम्पोर्टेंट आपका क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे एक और बात बड़ी इसमें से जो खुशाइंद नजर आ रही है। आपको याद होगा कि कोविड के जमाने में जी वो तो पूरी दुनिया का मसला था, हाँ जी तो पूरी दुनिया ने अपने अपने मिजाज, अपने अपने तरीकों से डील किया, जी जी है ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान ने दुनिया जानती है कि जिस तरीके से डील किया, पाकिस्तान बहुत अच्छे डील करने वाले ममालिक में था। पाकिस्तान में हमने देखा, विलिंग वेज में हमने एक मिसाल ये कायम की कि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं रुकी। हमारे ग्रुप सेशंस, हमारी सारी एक्टिविटीज बिल्कुल एज पर रूटीन थी। और हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ऐसा वो जो कंटेजियस होने वाली बात थी, एक दूसरे को, यहाँ कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह एक ठोस मजबूत हिकमत अमली होती है ऐसे किसी चैलेंज के मौका पर, वही पॉलिसी इस वक्त भी है। जी और वो पॉलिसी क्या है कि अपने आप को इमोशनली काम रखना है, स्टेबल रखना है, और अपने काम की तरफ फोकस रखना है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, जब आप फोकस्ड होते हैं ना मोहसिन साहब, तो आपके मूड भी बहुत मेंटेन रहता है। लेकिन जब आप रिट्रैक हो जाते हैं और आपको कहीं से ऑप्शन मिल जाती है ना, जी तो फिर आपके रिट्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके फिर मूड खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते जी। हैं। आप स्टेबल नहीं रहते हैं, जी और पॉजिटिव तो फिर बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा हो। जी बिल्कुल। तो उस ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जितना खुद को मसरूफ रखेंगे, जितना फोकस्ड रहेंगे, जितनी जिम्मेदारी आप अपने मूड की लेंगे, अपनी नींद की लेंगे, अपने पुरसुकून रहने की लेंगे, उतने ही जो आपकी जिंदगी है वो आसान हो जाएगी। अच्छा, रूमर्स बहुत ज्यादा फैलती हैं, जी जी अफवाहें। जी अच्छा, ये जो कच्चे कान वाले बाज़-औक़ात हम में से कुछ लोग होते हैं, जल्दी से, अच्छा, एक दो चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। जी। एक तो ये कि कोई अफवाह सुनी, जी। तो अभी उसकी कोई तस्दीक नहीं की, ना उस बारे में कोई रिलायबल सोर्सेज से, कोई ऑथेंटिक सोर्सेज को कोई जाना परखा, जल्दी से उसको आगे दो लोगों को बता दिया, उन दो ने आगे चार को बताया। जी। अच्छा, ये जो काम है ये भी हमने नहीं करना। इसी तरह से ये जो यानी एक खबर का दूसरे तक
पहुंचाना है, ये इतनी भारी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है. ये ऐसे ही है जैसे हम कई दफा कहते हैं कि हमारे जो ख्यालात हैं उनके भी बच्चे और फिर पोते भी होते हैं. एग्जैक्टली ख्यालात बच्चे देते हैं जी. और फिर वो कुनबा बनाते हैं. जी जी. और ऑब्वियसली फिर जितना कुनबा बड़ा होगा आप उसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. अच्छा, फिर एक और काम, वंस अपॉन अ टाइम किसने कहा था मोहसिन साहब ये बात कि कुंबा जितना बड़ा होगा आप उसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं? ये याद आपको बात ये तो मुझे पता है कि किसी बड़े आदमी ने कहा है. बड़े आदमी ने, बड़ी खातून ने कहा था मोहसिन साहब. सही है. अच्छा जी. जी. तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम बात का ना वर्स सिनेरियो को बहुत ज्यादा जी सोचते भी हैं. हाँ. और उसको यानी जैसे हम सब की जिंदगी में ये होता है कि कभी कोई ना कोई हम सब के साथ ऊंच नीच हुई ही होती है जिंदगी में. तो हम उन वाकयात को रिकॉल कर करके बार बार जी 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 तो अपने आप को और ज्यादा तकलीफ देते हैं. यानी मिसाल के तौर पर मैं दूंगा कि जैसे ये बाज लोगों का कुछ थोड़ा नफ्सियाती रुझान भी ये होता है कि वो खबरों में से भी कोई ऐसी खबर, फिर उसी खबर को दूसरी जगह से, फिर उसी खबर को तीसरी, यानी वो कोई वाकया एक दफा हुआ होता है और हम अपने दिमाग को उस वाकये को बार बार रिपोर्ट कर रहे और होते इतनी हैं. कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं. जैसे अभी आजकल की सिचुएशन में somebody told me yesterday कि आपके इलाके में फिर रात ये हुआ, तो मैंने कहा नहीं भाई, आई वाज देयर, आई एम लिविंग देयर, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बहुत लोगों को बताया भी और पूछा भी, तो ऐसा मत करें और ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि इससे ये होगा कि आप तो शायद उससे कुछ इंटरटेनमेंट गेन कर रहे हैं, या आपका ब्रेन है जो आपको बार बार मैसेज दे रहा है, कोई थ्रिलिंग आपका कोई एस्पेक्ट भी हो सकता है. मगर जिसके साथ आप उस न्यूज को शेयर करें तो हो सकता है वो उसके लिए उसके बड़े सीरियस कंसर्न्स हों और वो उसको आप उसमें पैनिक क्रिएट कर रहे हों. तो जो अभी जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे ना, तो जिम्मेदार होने का पहला सबूत तो ये है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन को कभी भी स्प्रेड नहीं करना चाहिए. यानी ये तो चले थोड़ी क्रूशल सी सिचुएशन है ना आजकल हमारी, थोड़ी क्रूशल है, मगर नॉर्मली भी यानी जिंदगी एट पीस जो कि इंशाल्लाह है भी और हो भी जाएगी, तो उसमें भी किसी भी र्यूमर को, फॉल्स इंफॉर्मेशन को, बल्कि इस्लाम में भी इस बारे में है बहुत सारी हदीस हैं कि कभी झूठी बात मत फैलाओ बगैर किसी एविडेंस के. एग्जैक्टली. और इसके ऊपर बड़ी सख्त बल्कि नापसंदीदगी का इजहार भी किया जाता रहा है. एग्जैक्टली. अच्छा, एक और चीज भी इसमें है कि आप पेसिमिज्म हो या ऑप्टिमिज्म हो, दोनों में एग्जेजरेट नहीं करना, दोनों में एक इंतहा को नहीं छूना. जी जी जी, बैलेंस. अच्छा, ओके, बैलेंस. उसकी वजह ये है कि बाद औक़ात हम पेसिमिज्म में इंतहा को छूते हैं. जी जी. बाद औक़ात हम जो है वो ऑप्टिमिज्म के अंदर बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर रहे जी होते जी हैं. जी जी. तो एक जो मुतवाज़िन सोच है, वही लॉजिकल सोच जो है वो आपको मदद देगी. बस यू जस्ट हैव टू बी एक्चुअली मोहसिन साहब, जिसमें मॉडरेट है ना, यानी आप वो कहते हैं ना कि आप हर चीज के लिए तैयार रहें. यानी अगर आंधियों का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो हमने तैयार होना होता है कि हमने कपड़े सुखाने का टाइम क्या है और फिर जिम्मेदारी से उतार लेने हैं, क्योंकि हमें पता है कि अनप्रडिक्टेबिलिटी है ना वेदर में, तो ये है जिम्मेदारी. लेकिन अगर आप इतने ही पॉजिटिव हो और आप कहें कि आएगी नहीं आंधी, मौसम बहुत अच्छा है, तो लॉस का फिर खतरा होता है. वी जस्ट नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी हमने बैलेंस रहते हुए, मॉडरेट रहते हुए, अपने आप को महफूज रखते हुए, सबसे पहले तो अपनी ज़हनी सेहत को महफूज रखना है हमने. जी समीरा, जी जी, ये आपकी बात से भी कनेक्टेड बात बनती है. वो आपने बारिश की बात की थी, तो जहाँ ने आंधी की बात कर दी. जी बिल्कुल ऐसे ही है सर. जैसे देखें, अभी भी यही डिस्कशन हमारी बहुत ज़बरदस्त वे में चल रही है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरकनेक्ट होती हैं या कहीं ना कहीं उनका लिंक जब आपस में जुड़ता है. अभी जैसे मिस जहारा बात कर रही थी कि बहुत सारी ऐसी खबरें जब फैलाई जाती हैं तो उसमें से जब वो आगे जाती हैं तो उसकी भी शक्ल बदल जाती है बाज़ दफ़ा. तो इन सब चीज़ों में हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये पहचानना है कि क्या ये बात सही है, और अगर है भी तो उसमें सच्चाई कितनी नोयत की है, या फिर उसमें जो हमें सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है तो क्या वो पर्सन वैलिड है भी या नहीं, या फिर वो मन घड़त बातें आपको सुना रहा है. तो इन सब चीज़ों को हमने पहले खुद एक प्लेटफॉर्म से कंफर्म कर लेना है कि क्या ये रियलिस्टिक बेस्ड हैं भी या कि नहीं. अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बाज़ दफ़ा जब इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होता है जिस पे एक्सपीरियंशियल एविडेंस, जैसे हिस्ट्री हमें बताती है कि अगर इस तरह का माहौल हुआ तो बाद में ये हो गया, या ये तरह की कंडीशन थी, या ये सिचुएशन जनरेट हुई थी,
اس سے بھی بہت سارے لوگ ایکسپیرینشل اوائڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ ایسی باتوں کو سننے سے بھی گھبراتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے, اور اگر کوئی اس طرح کی بات جو کہ غلط انفارمیشن بھی کوئی ان کو دے دیتا ہے وہ ڈبل پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس سب سچویشن میں جو آپ کا ایموشنل لیول ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے, کہ جب آپ اپنی ان انفارمیشن کو ایک اوتھینٹک سورس سے سنیں گے یا اس کے بارے میں پڑھیں گے یا سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ہیلپ ہوتی ہے اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ وار اگر, یا جو ابھی ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا جواب ان کو دیا, تو اس جواب کے بدلے ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ رک جائیں گے تو بات یہیں پر ہی رک جائے گی. تو یہ بھی ایک ڈائلاگ کی ہی فارم ہے کہ جب آپ بات چیت کو بڑھاتے ہیں تو اس کے اندر آپ سمجھداری سے کام لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, کتنی اہم بات آپ نے کہی کہ سمجھداری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ اپنا پیغام آپ بات کرتے رہتے ہیں, آپ پیغام دیتے رہتے ہیں, اور ہمارا پیغام بدلا نہیں ہے. یعنی یہ ایک خاص بات ہے, جیسے سمیرہ نے بات کی کہ ہمارا پیغام کل بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے, اور آئندہ بھی یہی رہے گا کہ اپنی جو اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی کو, جیسے ہم تو یہاں ولنگ ویز میں پازیٹیو افرمیشنز کا کتنا زیادہ ہمارے ہاں ایک پریکٹس ہوتی ہے. جب ہمارے جو پیشنٹس ہیں نیورو پلاسٹیسٹی کے پروگرام میں اپنے لیے ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ تیار کرتے ہیں, جی, تو یہ جو پازیٹیو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں انسان کی خوبصورتی یہی ہے. اچھا, جب اگر آپ کی باتوں سے, آپ کی سوچوں سے, آپ کے کام سے ڈرانا, دھمکانا, نیگیٹو ہونا, مایوس ہونا, سب کچھ مک گیا ہے, پتہ نہیں کی بڑھے گا. اچھا, بس ان قیامت آنا لیے, بس کی فائدہ زندگی دا. اچھا, یہ جو ہے نا, یہ ایک انسان کے شایان نشان نہیں ہے. انسان کے شایان نشان یہ ہے کہ وہ ایک پروقار طریقے سے آخری سانس تک اس میں اتنا محسن صاحب جوش اور ولولہ ہونا چاہیے, امید ہونی چاہیے زندگی کی اور زندگی گزارنے کی. خلیفہ جو ہوئے اللہ کے, زمین پر اللہ نے انسان کو جو بھیجا ہے تو بڑی ساری اس سے امیدیں لگائی ہیں کہ انسان کے اندر اس نے اپنے اوصاف کو چٹکی چٹکی بھر ڈالا ہے. تو ہم سب انسان اپنی اپنی زندگی میں بہترین کارہائے نمایاں سر انجام دینے کی بھرپور بہترین صلاحیت رکھتے ہیں. سو کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, آپ اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ کریں, نہ اوور ایسٹیمیٹ کریں نہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں. اچھا, ایسٹیمیشن کا طریقہ کیا ہوگا؟ روزانہ جائزہ, صبح اور شام, دن کا آغاز پازیٹیو افرمیشن سے, دن بھر اپنی کارکردگی میں اپنے تھاٹ اور موڈ کے پیٹرنز کا جائزہ لینا, اور شام تک پہنچتے پہنچتے اپنے دن کی کامیابیوں پر غور کرنا. جو رہ گیا اس پر کوئی ریگریٹ نہیں, اس کے لیے اگلے دن اچھی منصوبہ بندی کرنا. سونے سے پہلے اپنے رول کو بہترین انداز سے جو کر پائے اس پر شاباش, جو نہیں کر پائے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں بلکہ اگلے دن کی پلاننگ, اور پھر قدرت کے حوالے کر کے اپنے سارے نظام کو بے فکری سے سو جانا کہ اے اللہ میں نے آج اپنے حصے کا کام کر لیا ہے, آپ نے مجھے یہ زندگی دی, یہ دن دیا, میرے پاس امانت ہے, میں نے اس کو بھرپور طریقے سے گزارا, اب میں سوتا ہوں, اب کل اٹھوں گا, کل اپنا چارج دوبارہ سنبھالوں گا. تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سے ڈسکس ہو رہا ہے. جی بالکل. ابھی ایک کمنٹ میں پڑھی تھی محسن صاحب, آپ جیسے بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ لائیو, آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں, مجھے یہ بھی بڑا احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کے ذہن میں سوال ہے یا سوچ ہے تو ہم ساتھ ساتھ ہی اس کو بھی ایڈریس کریں. تو ایک بیچ میں پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کے شو کے ٹائمنگ کیا ہیں, تو شو کے ٹائمنگز ہمارے 1, 2, 3 ہیں, ایسے ہی ہے نا, 1 سے 2, 3 اس میں بس جو درمیان والا 2 ہے وہ TO2 ہے, 1 سے 3 تک ایسے کر لیتے ہیں نا. ہر ہفتے کی دوپہر 1 سے لے کے 3 بجے تک میں محسن صاحب اور ہمارے ساتھ ہماری کوئی ایکسپرٹ گیسٹ آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہے, موبائل فونز پہ, آپ کے جو ٹی وی اسکرینز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, وہاں پہ. اور ایک کلک کے فاصلے پر آپ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, آپ سے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں میں ہوں محسن نواز اور سمیرہ افتخار ہمارے ساتھ. سمیرہ, آپ کے لیے میسج آ گیا.
ओके नहीं, इधर कमेंट्स में नहीं आया, वो नीचे के लिए आ गया नीचे के लिए आ गया, आपके लिए फैमिली आ गई जिनके okay, साथ आपने सेशन कंडक्ट जी करना जी है। हाँ, तो मतलब समीरा ये देखें कि अपने काम में से टाइम निकाल के जी उन्होंने हमारे शो को रौनक बख्शी है, और अब दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी देर बाद हम भी अपने बिल्कुल अपने काम बिल्कुल आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने सुना और अल्लाह हाफिज, देखा फिर भी आपसे आपको। देखा भी और फिर Thank आपसे you so दोबारा much. बात होगी। ओके Thank अल्लाह चलो, बहुत हाफिज। शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया, बहुत अच्छा अल्लाह लगा, हाफिज, थैंक यू सो अल्लाह मच, अल्लाह हाफिज। ये थी जी समीरा इफ्तिखार हमारे साथ, हमारी साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल, जो कि अपने अगले असाइनमेंट के लिए सेशन को कंडक्ट करने के लिए गई हैं। यहाँ जी, जी। ये जो हमारे काम में लोग अपने पर्सनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ आते जी, हैं, जी, जी। उसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। जैसे मैंने ये देखा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसकी रेशो WHO ने भी बताई कि काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी। उन्होंने कहा जी कि 80% लोगों को कभी ना कभी लाइफ में डिप्रेशन, यानी क्लिनिकल डिप्रेशन जी। एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एग्जैक्टली, और मोहसिन साहब इवन उन्होंने ये भी कहा कि जो आइंदा 10 साल हैं उनमें अगर जो ज्यादा अमवात का खतरा है ना, हाँ। तो उसकी मेन वजह डिप्रेशन होगी। कॉज ऑफ डेथ जो है वो 2030 में ये जी। WHO कह रहा है। जी। अच्छा, तो अपने आप को डिप्रेशन से बचाना, प्रिवेंट करना, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली मोहसिन साहब, और डिप्रेशन भी कोई ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट आप जी। रात को सोए सुबह उठे तो डिप्रेशन जी, आपको पता चला कि जी अब मुझे तो डिप्रेशन है, जैसे कि फीवर होता है। ये होते होते होता है। होते हैं, और उसकी जो मेन रीजंस हैं वो ऐसे ही हैं। व्हेन यू आर नॉट मैनेजिंग योरसेल्फ, व्हेन यू आर नॉट एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम्स, व्हेन यू आर नॉट सॉर्ट आउट योर एंजाइटी, स्ट्रेस, अपने मूड को नहीं प्रायोरिटाइज करे, जब आप अपनी नींद को कंप्रोमाइज करते हैं, जब आपको पता चल गया कि कोई वजह के बगैर मुझे बेचैनी और परेशानी है, और आप उस वजह पे ढूंढने पे या वजह तलाश करने में ही लगे रहते हैं या रिलेट करते हैं, जी, और राइट टाइम पे राइट हेल्प नहीं लेते, तो फिर एक दिन आपका डायग्नोसिस होता है कि यू आर डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन। ऐसे और अनफॉर्चुनेटली मोहसिन साहब, जी, बच्चों में भी इंडो पाक में इन दो ममालिक जिनके भी हम बात भी कर रहे हैं, और एक के हम शहरी भी हैं और दूसरे भी हमारे जो हमसाया मुल्क है, जी, जी, वो उसमें भी जो चाइल्ड डिप्रेशन का रेशो है जी। वो दुनिया के बाकी ममालिक से ज्यादा है। जी। लाइक इट्स 43%। जी। यानी 2024 में ये जो WHO की रिसर्च आई थी, 25 की अभी ड्यू है, जो अब आएगी सितंबर में, अक्टूबर में, यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे वो सारी रीडिंग्स जो हैं वो शेयर करते हैं। तो अभी जो 2024 की थी, तो उसमें 43% जो रेशो है वो इंडो पाक में आई है, एशियंस कंट्री में, चाइल्ड डिप्रेशन की, जो कि बहुत हाई रेशो है। बहुत हाई और- रेशो है। जी, बहुत यानी high। इसका मतलब है कि हमारी असल तवज्जो तो हमारी अगली जनरेशन पे होनी चाहिए, हाँ। कि जो जिनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, Exactly, तो- उनको हम किस तरह के माहौल में डेवलप कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो अब देखें कि हम आजकल की सिचुएशन अगर आप देखें, तो बेसिकली तो हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, जी। हम नफरतों के बीज भी बो रहे हैं, हम उनको नफरत करना सिखा रहे हैं, हम उनको दुख, गम, तकलीफ का एहसास भी दिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, बेबसी के साथ भी उनके अंदर रहना ये फीलिंग सिखा रहे हैं हम हाँ, उनको। एग्जैक्टली फिर हम उनको एक अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली एक मैसेज ये भी दे रहे हैं, माइट इज राइट वाला मैसेज भी हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जिसको दुनिया में कोई अब पसंद नहीं किया जा रहा। जी। यानी ये वो टाइम था जबकि एनिमल ब्रेन से ज्यादा ऑपरेट किया जाता था, जी, तब माइट इज राइट वाला जो था ना एलिमेंट, उसको वो ज्यादा हाई था। जी। आजकल का तो दौर है तो वो ये कि जो जितना साइंस के असूलों पे अमल करेगा, जितना समझ बूझ वाला होगा, जितना सेन होगा, जी। मेंटली स्टेबल होगा, वो उतना ही राइट होगा, एग्जैक्टली उतना ऑथेंटिक भी होगा, उतना वो जिंदगी में ग्रो करेगा, Exactly. उतना अपने लिए, दूसरों के लिए फायदेमंद होगा, Exactly. उतना प्रोडक्टिव रोल वो अपने जी। माहौल के लिए, मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए वो किरदार जो है वो अदा कर रहा होगा। बिल्कुल। तो इन सब चैलेंजेस के साथ भी अगर हम अपनी प्रायोरिटीज में ये रखते हैं कि हमने सिर्फ नीचा दिखाना है, और हम रात के अंधेरे में किसी जगह पे वायलेशन करते हैं, किसी के घर में, इसी ऐसे ही हो गया ना जी, मोहसिन साहब के जी, दो जी। लोग अपने अपने घरों में हैं, और आप बिला वजह, बगैर किसी एविडेंस के, जस्ट अज्यूम करते हुए अगले के घर के ऊपर आप कुछ ऐसी स्ट्राइक कर देते हैं, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डरा धमकाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली, ये वो दौर रहा नहीं है अब। तो हम जो आज बीज रहे हैं बेसिकली,
शायद काटना तो हमने वही है। काटना हमने, और हमारी जनरेशन्स ने भी, मोहसिन साहब। जी, जी, और जी। हमारी जनरेशन्स जिस टाइम में आएंगी तो वहां पे तो फिर ये टाइम होगा भी नहीं, सेकंड्स की बात होगी। जी। तो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। कुदरत के जो इशारे हैं ना वो हम सबको मिलते हैं जी। अपनी ज़िंदगी में। वो एक साहब थे, उनकी एक बड़े दाना से मुलाकात हुई, जवानी का ज़माना था, तो उन्होंने कहा जी कि कुदरत तुम्हें आगे बढ़ते हुए अपने ज़िंदगी के सफ़र में 4 दफ़ा ये मैसेज देगी कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो अपना रोल अब मुकम्मल कर रही है। Okay. अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में तुम कंप्लीशन की तरफ हो। ठीक। अच्छा, उससे उसकी बात को सुना, गौर किया और अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ गया। और 40 साल गुजर गए। ओके। 40 साल गुजर गए, वो ज़िंदगी में अपने काम शाम ये वो सारा कुछ रूटीन्स उसने अपनाए रखी। फिर वो बीमार पड़ा ओके। और वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। ठीक। और डॉक्टर्स ने उसे ये कहा कि भी अब वक्त आ गया है। अच्छा। तो वो उसने बाहर आके ना उन साहब को ढूंढा और वो उनके जहाँ वो थे वहाँ वो हयात थे। जी। तो उनके साथ उसने दोबारा राब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि आपने तो मुझे कहा था कि ज़िंदगी के सफ़र की तकमील के 4 मैसेजेस मिलेंगे, तो मुझे तो ये एक ही मैसेज डॉक्टरों ने दे दिया है अब, तो वो आपकी बात तो गलत साबित हुई। तो उन्होंने उसको जो है वो ये बताया कि भाई वो जो 4 मैसेजेस हैं वो सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको अपनी ज़िंदगी में आते हैं। हाँ। वो कहने लगी जी कि वो 4 मैसेजेस ये हैं कि जब आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं जी। तो हम हम उस मैसेज को नहीं पहचानते कि ये ज़िंदगी का एक नया सुनहरी दौर शुरू हो रहा होता है। यानी एक दौर से दूसरे दौर में हम शिफ्ट हो रहे होते हैं, एक फेज से दूसरे फेज में। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उन बालों को वापस उसी रंग पर रंगते हुए इस बात को झुठलाना चाहते हैं कि हम नहीं बदले। उन्होंने कहा जी कि दूसरा मैसेज जो आपको मिलता है जी। वो आपको मिलता है उस सूरत में कि जब आप की जो नज़र है जी। वो कमज़ोर पड़ती है। ओह। नज़र का कमज़ोर पड़ना एक इशारा कुदरत का ये भी होता है कि बाहर से ज़्यादा अंदर झांकने का मौका आ गया। हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहर की तरफ अपनी नज़र तेज रखना चाहते हैं, अंदर की तरफ झांकना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा जी तीसरा भी एक मैसेज है, और वो तीसरा मैसेज ये है कि जब आपके दांत हिलने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दांतों को रिप्लेस कराते हैं। जी। जी। हम अपने खाने की वही रूटीन जारी रखना जी, चाहते हैं, हम जी। वही सारी चीजें उसी तरह हम खाने पीने का, जबकि कुदरत क्या मैसेज दे रही होती है कि आपको अब अपना खाने का भी चेंज करना है, मेन्यू चेंज करना है। मेन्यू चेंज करने का। तो आप झुटला देते हैं इस जी, मैसेज को जी। और आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। और फिर जो चौथा पैगाम है कि जब आपको कोई बीमारी आती है जी। तो ये जिस्म की कमजोरी की अलामत होता है, और हम उस बीमारी से भी काफी अरसे तक डिनाइल में रहते हैं। कितनी बीमारियां हैं जी। जिसमें हम उससे इनकार में ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम आंखें बंद किए रखते हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं। हालांकि उस बीमारी को प्रिवेंट करने का और उस बीमारी को मैनेज करने का पहला स्टेप भला क्या है? डिनाइल से निकल आना। जी बिल्कुल, एक्सेप्ट करें आप। एक्सेप्ट करें और उस पर चल पड़े, जैसे डायबिटीज में हम देखते जी। हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कुदरत के मैसेजेस हैं ये तो हम अगर गौर करें, कुदरत देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए निशानियां हैं। तो हम अगर अपनी लाइफ्स पे गौर करें तो हमें अपनी जिंदगी में कितने मैसेजेस ऐसे रूटीन में मिलते रहते हैं। जी। पर देखने वाली नजर भी तो चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे मुश्किल जो आपने अभी कहा ना मोहसिन साहब, जी कि जब नजर बाहर की कमजोर होती है तो फिर अंदर देखने का जी टाइम होता है। जी तो मगर हमें ऐसा लगता है कि शायद हम जंग शुरू कर देते हैं कुदरत के साथ भी और अपने साथ भी, कि हमने तो देखना ही बाहर है। हाँ, अंदर झांकना, अंदर देखना, इंट्रोस्पेक्शन जो है ना, इंट्रोस्पेक्ट करना इज डिफिकल्ट जी बेसिकली। जी। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम देखेंगे तो फिर हम कमियां भी नजर आएंगे ना। अच्छा, हम इस बात को जो मैंने देखा है, मेरे साथ जो लोग राब्ते में आते हैं तो मैं कभी कभी बातचीत के दौरान जी। एक सवाल उनसे ज़रूर पूछ लेता हूँ। जी। वो ये सवाल पूछ लेता हूँ कि आप माजी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या मुस्तकबिल के बारे में? तो ज़्यादातर लोग जो है इन दोनों में से किसी एक को चूज करते हैं। जी। जी। और जी। मैं उसमें किस जवाब को ढूंढ रहा होता हूँ? हाल को। हाल को।
اچھا تو لوگوں کو اپنے حال سے زیادہ اپنے ماضی یا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی عادت پڑی اور ہوتی ہے. مسائل کی وجہ بھی یہی ہے نا محسن صاحب کہ یا تو آپ ماضی سے نہیں نکل پاتے جی یا آپ کو حال بے حال کیے آپ کا مستقبل بے حال کیے ہوتا ہے جی اور حال ویسے ہی بے حال ہو جاتا ہے. یہ جو بے حال ہے اس کے اندر ہی تو یہ بات اس کا جواب چھپا ہے. جی بے حال یعنی حال سے بیگانہ ہونا. جی جی تو اپنے حال سے بیگانہ ہو کر تو حال کو بدلا بھی نہیں جا سکتا. جی ہماری آپ سے بات چیت چلتی رہے گی اور ایک بریک لیتے ہیں, واپس پلٹ کے آئیں گے تو ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز پر اپنے اگلے سیگمنٹ پر جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں میں ہوں محسن نواز اور میں ہوں جہاں آرا. اور ہمارے ساتھ اس وقت کال پر شامل ہو رہے ہیں جناب آصف خان. السلام علیکم آصف بھائی. وعلیکم السلام جناب کیا بھائی, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. آپ کے الفاظ میں آئی ایم گڈ, ایکسلنٹ, سپرب, بہترین الحمدللہ. جی اچھا, تو کیا حال ہے والا آصف بھائی؟ سب بہترین, باکمال, زبردست, اللہ کا احسان عظیم ہے الحمدللہ رب العالمین. All is exceptional, outstanding, brilliant. واہ, آپ ہمیشہ اسی جذبے سے معمور نظر آتے ہیں جو کہ آپ کا شروع سے ایک انداز ہے. آصف بھائی, لوگوں میں صورتحال کے مطابق ظاہر ہے کہ انسان جو ہوئے تو کہیں بھی کئی دفعہ ہم بے چینی میں, پریشانی میں اپنے فوکس سے ہٹ جاتے ہیں. ہم خبروں کی طرف ذرا زیادہ اور پھر بار بار خبریں اور پھر خبریں ہی خبریں, اور وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ خبریں بھی جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں تھیں بعض اوقات. یعنی اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ الجھ جانے سے ہم اپنے اصل ایجنڈے کو بھول جاتے ہیں, تو انرجی ہماری ڈرین ہوتی ہے ساری ایکٹیویٹی سے. آپ کا کیا ایکسپیرینس, کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ جی محسن بھائی, میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ آپ کے پاس دو چوائسز ہمیشہ ہوتی ہیں. جی, ایک چوائس یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں یا ان حالات کے بارے میں سوچتے رہیں جن کو بدلنے کی صلاحیت آپ کے اندر 0% ہے یا بہت کم ہے. ٹھیک. اور دوسری آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ آپ اپنی ساری انرجی, سارا فوکس, سارا دھیان, ساری محنت جی اس چیز پر لگائیں جس چیز سے آپ حالات بدل سکتے ہیں. جی اور ڈسکنیکٹ ہو ہاں, گئی یہ بیچ میں جو جی ہے جی وہ کوئی کچھ کیونکہ کنیکٹیوٹی کا بھی کچھ مسئلہ ہے. جی 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 جہاں ان کی انرجی سے کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا, جی اور وہاں جہاں لگانی چاہیے وہاں لگ نہیں رہی. جی 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 آصف بھائی. اچھا, اب یہ جو ہے چیز, جیسے آپ کی بات بہت درمیان میں کسی کال نے انٹرپٹ کیا, لیکن آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ انرجی جہاں لگانی ہے بعض اوقات وہاں نہیں لگ رہی ہوتی, اور جہاں ہماری انرجی استعمال نہیں ہو سکتی وہاں ہم زور لگائے رکھتے ہیں. تو اپروچ کیا ہوگی, بہترین اپروچ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہترین اپروچ یہ ہے کہ آپ ایک ڈائری لیں, ایک پین لیں اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ کوئی بھی سچویشن جس پہ آپ انرجی اپنی ایگزرٹ کرنے لگے ہیں, اس سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے آپ کا رول کیا ہے. آپ 3 ایکٹیویٹیز کیا کر سکتے ہیں, 1 2 3. جیسے کوئی فائنینشیل کرائسس آپ کی لائف میں, یا میریٹل کرائسس آپ کی لائف میں, یا آپ کی لائف میں ہیلتھ کرائسس ہے, تو ایک یہ ہے کہ اس ہیلتھ کرائسس, فائنینشیل کرائسس, بزنس کرائسس, میریٹل کرائسس کے بارے میں سوچتے رہنا اور فرسٹریٹ ہوتے رہنا اور اپنی فیلیئرز کو. اچھا, اتنی خوبصورت بات میں وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بیچ میں یعنی جیسے چونکہ واٹس ایپ پر ہم کنیکٹڈ ہیں. جی جی جی, اور پھر وہ لائیو کالز اور میسیجز کا بھی تو سلسلہ ساتھ ہی ہے نا. جی آصف بھائی, یہ واٹس ایپ کال کی نا ایک بڑی زبردست خوبصورتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ہوتی تو یہ فری ہے, خاص طور پہ ملک کے باہر والے لوگوں کے لیے بڑی کام دیتی ہے, پر اس پہ نیٹ ورک والی کال آ کے آواز کے اندر رکھنا ضرور ڈالتی ہے. تو یہی ہوا اس میں, آپ جب چاروں کے سٹیٹس کے والے سے بتا رہے تھے تو بات بیچ میں پھر کٹی. جی نو وریز, آپ اجازت دیں تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو کوئی فائنینشیل کرائسس ہے, کوئی میریٹل کرائسس ہے, کوئی بزنس کرائسس ہے,
कोई आपको हेल्थ क्राइसिस है, जी तो एक ये है कि आप उस सारे क्राइसिस के प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस या फेलियर्स के बारे में ही दिन रात सुबह शाम सोचते रहें। और दूसरा ये है कि आप एक डायरी पेन लें और अपने आप से पूछें, ये क्राइसिस तो आ गया है, ये फाइनेंशियल है, बिजनेस है, पर्सनल है, मैरिटल है, अब व्हाट इज माय स्ट्रेटजी टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस। मैं इस वक्त करंट सिनारियो के अंदर 1 2 3 3 टाइनी एक्शंस क्या लूं कि मैं इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ले लूंगा। दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 24-5 इयर्स, जब से मैं दुनिया को सिखाता हूं एज अ हाई परफॉर्मेंस कोच, एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर, कि आप देखें कि आपके कंट्रोल में क्या है और आप इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए इस मौजूदा हालत में क्या कर सकते हैं, इस मौजूदा रिसोर्सेज के साथ, अवेलेबल रिसोर्सेज में व्हाट इज द बेस्ट एक्शन व्हिच आई कैन टेक राइट नाउ। तो मेरे ख्याल में जैसे ही हम ये राइट नाउ वाली अप्रोच पे आते हैं तो थिंग्स स्टार्ट शेपिंग अप और हमारी सारी एनर्जीज और फैकल्टीज आ जाती हैं कि भाई ये अज़दवाजी मसला तो आ गया है, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकलना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाऊं। जी अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन ये वही चैलेंज है जो कि कॉल के जी 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 सोल्यूशन ओरिएंटेड। मेरे ख्याल में अपनी एनर्जीज को सोल्यूशन फोकस्ड रखना है। जी जी जो जी हमारा सवाल था कि हम अपनी एनर्जी या तवानाई का सही इस्तेमाल किस जगह पर है, तो मैं कहता हूं अगर आप वो 3 काम कर रहे हैं जिससे सोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं तो जी वंडरफुल, कीप इट अप, जी जी वो जी जबरदस्त इस्तेमाल है एनर्जीज का। जी लेकिन अगर सोल्यूशन के बजाय हम प्रॉब्लम 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 फोकस्ड हो गए हैं तो वो तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा, वही मैग्नीफाई होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बड़ी खूबसूरत आपने बात कही। और ये मैग्नीफाई किसको करना है, ये हमारा इख्तियार है और हम अपने उस इख्तियार को अगर पहचानें और फिर सेलेक्ट करें, चूज़ करें और इस्तेमाल करें तो उसी ने तो नतीजा देना है। तो आसिफ भाई एग्जैक्टली हस्बे रिवायत आपने इतना खूबसूरत एनर्जी से भरपूर मैसेज दिया मेरे नाजरीन के लिए कि मज़ा आ गया। आप खुश रहिए और किसी वक्त हम आपको स्टूडियो में भी दावत देंगे, आप तशरीफ़ लाइएगा, रौनक बख्शिएगा। आपके मदू करने का बहुत शुक्रिया, और आपके नाजरीन मैं समझता हूँ बड़े लकी हैं कि वो आपको सुनते हैं और उनकी जिंदगी में आप तवानाई भरते हैं, हरारत भरते हैं, उन्हें जीने का सलीका सिखाते हैं। तो मैं तो आपसे खुद इंस्पायर हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ी इनायत आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आसिफ खान साहब हमारे पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह ट्रेनर और जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे यूथ के साथ काम किया मुख्तलिफ तालीमी इदारों में। तो आसिफ खान साहब हमारे साथ थे। बहुत बेहतरीन बात कर रहे थे वो। और ये होता भी है ये मोहसिन साहब कि जी जब आप किसी डिफिकल्टी में जाते हैं ना, जी जी तो होता ये है कि जैसे लेट्स सपोज समबडी इज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, जी तो होता ये है कि वो उसको राइट डायरेक्शन में क्योंकि सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचता, जी जिसकी वजह से जो उसका मैरिटल है वो भी क्राइसिस आ जाता है, रिलेशनशिप है तो वो भी आ जाता है, हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, जी जी वर्क प्लेस परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी पुअर हो जाती है। जी तो जी जो असल क्राइसिस है ना हम्म, वो तो है ही है, जी जी उसके साथ जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो भी एक रोल प्ले करते हुए उस क्राइसिस को मजीद बढ़ा देते और हैं। जो मैग्नीफाई करना है वो हमारा इख्तियार था जो हमने इस्तेमाल कर जी लिया। जी जी बिल्कुल। तो बहुत ही बेहतरीन बात की, रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने बड़ी अच्छी एनर्जी के साथ जी जो बेसिकली हमारा आज के शो का थीम भी है और डिमांड भी थी कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। देखें अब इनकी जो आसिफ साहब थे, जी इनकी बात से मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मोटिवेशन का कोई इशू था जी या इन्होंने जरा सी भी कोई ऐसी बात की कि छड्डो मोहसिन साहब ऐसा कर लो, तुसी जंग दे हालात दसो और सुनाएं आप सेफ हैं, और सुनाएं हाँ आप हाँ घर ही हैं ना, हाँ बाहर तो नहीं निकले। वो एक और भी चीज है ना, वो अपना सेफ होना मार्क भी करने का रिवायत आज कल है ना सोशल हाँ मीडिया हाँ एग्जैक्टली, पे। हाँ मार्क्ड एज सेफ। हाँ तो हाँ उसमें ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप काम पे क्या कर रही हैं, हाँ काम पे क्यों जा रही हैं जी आप, जी नहीं आप काम पे बैठे हुए हैं। तो देखिए अब ये जो है ना अप्रोच, ये है राइट अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली कि आप जो आपके करने के काम है ना, जो रूटीन है उसको जारी और सारी रखें जी विद हाई मोटिवेशन। और
اس میں آپ کو جو چیز آپ ایک اہم رول پلے بھی کر سکتے ہیں بینگ سٹیزن، ایک رسپانسبل سٹیزن، اور اس میں یہ ہے کہ کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے. آئی ایم ریپیٹنگ دس، کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے، کسی رومر کا حصہ نہ بنے، کسی ورس سینیریو کو بغیر جانچے پرکھے سمجھے رومر کو پر یقین نہ کر لیں، یکدم گھر میں نہ بیٹھ جائیں، ڈس فنکشنل نہ ہو جائیں، آئسولیٹ نہ ہو، لو موڈ کے ساتھ نہ ہو، نیگیٹو نہ ہو جائیں، جی نیندیں نہ اڑا لیں، نیندیں نہ اڑائیں، راتوں کو نہ جاگیں. جی بالکل. کہ یہ نہ ہو کہ آپ کھانے پینے سے بھی ہو جائیں، پلانس جو آپ کے ہیں آپ اپنے پلانس کو آپ پوسٹ پون کر دیں. اگر اسٹڈی میں ہیں تو اپنی اسٹڈی کو فوکس کریں. جی اگر کام پر ہیں تو جو جس جگہ آپ کا کام ہے، جیسے ہم ہاسپٹل انڈسٹری میں ہیں، ہمارے پاس اٹینڈنس پوری ہے الحمدللہ. ہمارے جتنے لوگ ساتھی کام کر رہے ہیں، جب ابھی میں اسٹوڈیو پہنچا تو نیچے استقبال کرنے والے جو لوگ تھے، گارڈ سے لے کے ریسیپشنسٹ اور پروفیشنلز اور مختلف لوگ، ہر جگہ بہت ہی اچھا مجھے انہوں نے جس طرح سے ان کا استقبال تھا گرم جوشی کے ساتھ. اور کیونکہ ہم یہاں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں جب صبح ڈاکٹر صداقت علی صاحب کا وہ میسج کام پہ فوکس رکھتے ہوئے جیسے انہوں نے ہمیشہ کی طرح وہ بات کر رہے تھے، تو وہ جب میسج میں نے شیئر کیا تو سب کی طرف سے نا، مطلب مجھے پہلا جملہ بھلا کیا ملا عدنان کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ آپ کا میسج سن کے بڑا ہی مزہ آ گیا. اچھا. اور جب آپ کی ریسیپشن پر مریضوں کو، جو آنے والے وزٹرز ہیں، ان کو ڈیل کرنے والے کو اپنے کام پر مزہ آ رہا ہو، تو پھر آپ اپنی پرفارمنس تو پھر بہترین دیں گے. تو اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا، اور یہی ماحول گھر میں بھی رکھنا. ہم جب آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں ناظرین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بھی اسی ماحول کو تازہ رکھیے، بہترین رکھیے. کوئی اس میں جو ہے وہ اپنی روٹین سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو اختیار میں ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی کام کاج کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارا جو اختیار ہے وہ اپنے اللہ پر کی مہربانیوں پر بھروسہ اور یقین ہے. ہم دعا کے ذریعے اس سے شعوری رابطہ رکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں، اور الحمدللہ جب آپ نیک نیت ہوتے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی ایک زبردست انرجی بن کے سپریڈ ہوتی ہیں. تو اللہ اس ساری صورتحال کو، اور اللہ کے ساتھ ساتھ محسن صاحب، جو کہ ہمارا بڑا اسٹرانگ بلیف بھی ہے سب کچھ کرنے کے بعد، اس کے ساتھ جو ہمارا اختیار ہے کہ ہم کیسے بھی کسی منفی چیز کو رد کر سکتے ہیں، فارورڈ نہیں کر سکتے، ہم ہوا نہیں مزید دے سکتے ہیں ایسے مسائل کو. بیسیکلی سب سے بڑی پازیٹیو افرمیشن ہی میرے نزدیک دعا ہے. یعنی یہ اللہ نے جو انسان کو دعا کی ایک ترغیب تعلیم پہنچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کتنی ایسی دعاؤں کا جو حوالہ ہے. تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بہترین پازیٹیو انرجی کے ساتھ رہیں. جب ہم چپکے کوئی بات کرتے ہیں اپنے اللہ سے مخاطب ہو کے، تو یہ دراصل ہم ایک اپنے خیالات کا اظہار ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے اندر، یعنی اسی دعا کے اندر یہ بھی میسج ہے کہ آپ اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنی جس کے ساتھ، جیسے یہ جتنے حقوق کی باتیں ہیں جہاں یہ سارا کچھ یہی تو ہے کہ مجھے میرا کس پر کیا حق ہے اور میرے فرائض کیا ہیں. بالکل. اور یہ ساری جو لڑائیاں ہیں نا دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں محسن صاحب. ہاں ویسے ہیں ہم بڑے لڑاکے. کل ایک خاتون مجھے ملی تو وہ کہنے لگی کہ میرا خیال ہے انہیں یہ تو یاد ہی ہوگا سرحد پار والوں کو کہ ہمیں لڑنا ہی تو آتا ہے. تو ہم سے ذرا وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے جو چھیڑا چھاڑی کوئی کرتا ہے تو ظاہر ہے جو جس کے پاس جیسے ہماری جو ایک اپنی ایک ہمارے اندر جو سب سے زیادہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہم جذباتیت سے معمور ہیں، تو ہم اپنے جذبات کا رخ اگر لڑنے کی طرف ڈال دیں گے تو بس پھر اسی طرف ہو جائیں گے. چنانچہ اس میں یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم اسی لیے تو اس بات کا بار بار پرچار کرتے ہیں کہ اس سارے خطے میں سرحد پار یا اس طرف یا دنیا میں بھی کہیں بھی ایک انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے رابطہ کاروں میں تو امریکہ، کینیڈا، UK والے لوگ بھی ہیں، تو ہم ان سب کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک اچھی زندگی کے نتائج پر رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا، انہیں بہترین استعمال کرنا اور ان پر کام کرتے رہنا، اور اپنے آپ کو اپنے برین کی پروگرامنگ کے ساتھ، بہترین پروگرامنگ، سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کے ساتھ آراستہ رکھنا. بالکل. بہت خوبصورت بات کی ہے محسن صاحب آپ نے.
देखिए हम जो रिस्पांस है ना मोहसिन साहब, जी पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर आप देखें, जहाँ पे भी जंग मुसल्लत की गई या जहाँ जहाँ पे भी कोई डिफ़िकल्ट टाइम है जिन इलाकों में भी, जी तो उसमें बेसिकली तो जो उसके पीछे रीज़न है वो सर्वाइवल ही है ना, जी कि हमें राइट की बात है जी कि हमारा हक ये है, हमें हमारा हक दिया जाए जी और हमें हमारे हक से महरूम ना किया जाए। जी और उसके अंदर फिर वो जो राइट्स की जंग है वो बढ़ते बढ़ते फिर वो किसी की फिर वही जो राइट्स हैं वो कभी ना कभी फिर कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, सल्ब हो जाते हैं जो जी हुकूक होते हैं वहाँ जी पे। जी और फिर जब जंगें शुरू होती हैं तो उनका कोई अंजाम अच्छा नहीं होता। जी जी उसके अंदर फिर कोई अच्छा बुरा गलत सही ये कोई नहीं देखता, फिर वो माइट इज़ राइट वाला ही होता है। जी तो इसी वजह से हम तो बार बार ये कहते हैं कि पीसफुल रहते हुए, मस्बत रहते हुए, पुरसुकून रहते हुए, खूबसूरती से अगर डायलॉग को शामिल कर लिया जाएगा और डायलॉग को ही अपना सलूशन बनाया जाएगा, जी मसला हल किया जाएगा, जी तो जी इससे तो बेहतरीन बात ही कोई नहीं है। बेहतरीन। ज़बरदस्त। विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, और लेते हैं एक ब्रेक, वापस पलट के आते हैं तो आपसे मजीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ले जी, वापस आ चुके हैं विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से, और हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अपना तारुफ जी करवाएंगे। डॉक्टर जी जी मेरा नाम जी मिसेज आमिर है जी और मेरी बेटी की एज जो है वो 17 साल है। मैंने उसके बारे में आपसे वो बात करनी थी। आप बताइए। उसका मसला हाँ जी उसका मसला ये है कि वो माशाल्लाह बड़ी है लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करती। जैसे मतलब अगर वीकली हम कहते हैं कि अपने कपड़े नीट करके रखो बेटे, अपनी अलमारी साफ करो, तो वो नहीं इस बात पे मानती। अगर फोर्सली कहा भी जाए तो फिर भी वो बस अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। जहारा हमारे साथ मौजूद है। जहारा, आप मिसेस आमिर से कोई सवाल भी इसमें जो पूछना जी, चाहें जी। ताकि हम उनके सवाल को पूरी तरह एड्रेस कर सकें। जी 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 मिसेज आमिर, आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बाकी उसकी एकेडमिक जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बाकी बिहेवियर वाइज भी बहुत अच्छी है। बस एक ये इशू है जो खासी देर से चल रहा है, तो वो इसको उस पे नहीं वो मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रही मेरी बात पे। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिसेस आमिर, आपको सिर्फ यही एतराज़ है, बाकी तो ग्रेड्स अच्छे हैं और बाकी मामलात में भी अच्छी हैं, बस आपको ये एतराज़ है जो आपका मसला है कि वो जी, जी। अपनी कबर्ड्स और अपना रूम ऑर्गेनाइज नहीं करती हैं? जी बिल्कुल यही बात है। अगर अच्छा। मतलब अपना ब्रश जो जैसे ये ब्रश होता है तो उस बारे में बात करूँ, नीट नहीं करना। अगर कबर्ड है तो कबर्ड से चीज निकालेगी तो उसको खुला ही छोड़ देगी। बस इस तरह के उसके इश्यूज हैं। अच्छा जी, और आपके साथ उनका कैसा रिलेशन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से बेहतर है। मतलब मुझे नहीं लगता, बस इस चीज पे उसको मैं समझाती भी हूँ और जब वो नहीं इस चीज पे आती तो फिर डांट भी पड़ती है उनको। अच्छा और ठीक। आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है तो वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं स्टडी के लिए, ये छोटी बेटी है। अच्छा ठीक है। अच्छा मिसेस आमिर, फिर जब ये नहीं बात मानती हैं तो फौरन से आपका रिस्पांस क्या होता है? मतलब आप फिर खुद वो काम कर देती होंगी? नहीं डॉक्टर साहब, मैं उसे मतलब उससे इस चीज पे डांटनी पड़ती है और मैं नहीं करती। हाँ जी कई बार कर देती हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा मतलब फेडअप भी हो जाती हूँ बार बार कह के तो कर भी देती हूँ। लेकिन मोस्टली ये होता है कि मैं उसे कहती हूँ कि नहीं आप ही करो। फोर्सली मैं करवाती हूँ लेकिन वो अपना काम नीट नहीं करती। मतलब जैसे बददिली से करते हैं अपनी चीजों को। बस प्रॉब्लम ये है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं करती अपनी चीजों अच्छा को चलें, जैसे अगर करना मैं चाहिए। अदर देन दिस आपसे कुछ एक दो चीज़ें पूछना चाहूँ, जैसे कि अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में उनका कैसा रिस्पांस होता है, जैसे शावर लेना या कपड़े चेंज करने के बारे में अपनी पर्सनल। डॉक्टर वो तो सही है माशाल्लाह से, बिल्कुल अपना ख्याल रखती हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी जाना हो या घर में भी हो ठीक है, उसमें अच्छा, कोई ऐसा नहीं है। और बाकी उनका जैसे खाना पीना और नींद कैसी है? डॉक्टर साहब नींद उसकी मतलब सोती है। खाना पीना ऐसे ही डॉक्टर साहब मुझे फोर्सली उसे कहना पड़ता है कि बेटे ये चीज मतलब तुम्हारे लिए है, तुम्हें ये लेनी चाहिए, वीकली बीट लेना चाहिए या कुछ प्रोटीन ये वो चीजें मैं ही फोर्स करती हूँ। उन्हें खुद नहीं पता होता कि मुझे ये लेना है। और जैसे मल्टीविटामिन शुरू किए हैं उसके तो मैं ला के रखती हूँ कि बेटे ये खाओ, वरना मैं ना खाऊं तो कितने दिन वो बिल्कुल नहीं खाती।
ठीक है। अच्छा, केयर फ्री एटीट्यूड है, बस आपकी बात मुकम्मल हुई, फिर मैं आंसर करूँ इस चीज़ को? जी 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 बिल्कुल जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई। अच्छा, इसमें मिसेस आमिर ऐसे है मोहसिन साहब, दिस इज वेरी मतलब जिसे कहते हैं ना कॉमन पैटर्न्स, और ये बड़े आजकल पेरेंट्स का ना एक जिसे कहते हैं ना सर दर्द है, ये जब जी। भी मिले तो एक वो बड़ी आम सी बात होती है उनके नज़दीक, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात है, साथ ही ये भी कह रहे होते हैं पेरेंट्स, एक अच्छी बात है यानी एक स्टडीज एक में कोई अच्छी बात और साथ कुछ उनके बारे में बैलेंस जिम्मेदारी का, जरूर करते हैं वो। यानी मिस नामिर इनका कहने का मतलब ये कि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, जी। ये हमें अक्सर वालिदैन में हम ये चीज़ यहाँ देखते हैं, जी जो लोग अपने मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आपने बल्कि हमारा शो तो ट्यून किया ही हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने अपना इनपुट दे दिया है तो आप शो पर हमारे साथ रहिए, हम बातचीत करते हैं और आपके इस मसले पर मजीद डिस्कस ठीक करते है डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ लाइव में, सुनती हूँ आपका जी, थैंक यू। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज जी। अच्छा, उसमें इस तरह मोहसिन साहब कि जैसे पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें बुरा तो लग रहा होता नहीं अदा कर रहा है, और मतलब बिखरा हुआ है, जैसे वार्डरोब्स के बुरे हाल हैं ड्रेसिंग टेबल पे, मगर साथ ही वो फिर उस चीज़ को कंपनसेट फौरन से बैलेंस भी कर रहे होते हैं कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। जी तो कहीं ना कहीं पे ना उन्होंने भी, पेरेंट्स ने भी अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि जो चीज़ हमें चाहिए ना वो तो हमें मिल ही रही है, और वो है ग्रेड्स। जी क्योंकि जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट है और जो हमें आपसे चाहिए, जो हमारी डिमांड है, वो ये है कि स्टडी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जी बाकी चीज़ें हाँ वो भी करो, मगर नहीं होंगी तो वो हम कर लेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो एटीट्यूड है ना, जनरली वो पेरेंट्स ने खुद ही से डेवलप किया होता जी है। जब वो डेवलप करते हैं तो वो सॉरी, एट द एज ऑफ, आज मेरा क्योंकि गला भी थोड़ा ख़राब है जी। तो वो भी साथ साथ चल रहा है। अच्छा, तो जब वो डेवलप करते हैं तो एज के लिहाज से भी चीज़ें ज़ाहिर हो रही होती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बच्ची की एज की बात कर रही थी मुझसे, आपकी एज की थोड़ी बात हो रही तो उसमें ये है मोहसिन साहब के, अगर बच्चा 5, 7, 8 साल का है तो उसमें तो पेरेंट्स जो हैं वो बस बोलते हैं, वो समझते हैं कि कहना हमारा फ़र्ज़ है, कमरा ठीक कर लो, वार्डरोब सेट कर लो, कपड़े उठा लो, और साथ ही साथ वो खुद सेट भी कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं अब पढ़ाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब बच्चे ने देखा कि भाई अच्छा चलो एक काम तो मैंने करना ही है, तो उसमें फिर पढ़ाई वाला काम करूँ, क्योंकि इस पे तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जी अच्छा, ये हैबिट्स जब डेवलप होते होते परेशान कुन सूरत हाल तब होती है जब बच्चियां ख़ास तौर पे ऐसी एज में आती हैं जब माओं को ये फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये कुछ नहीं करती, जबकि मेरी बेटी तो ये भी करती है, मेरी बेटी तो कुकिंग भी और बेकिंग भी और लुक आफ्टर भी करती है घर को। तो फिर ऐसी सिचुएशंस में माओं को लगता है कि इसके साथ कोई मसला है, उनको लगता है मसला हमारे साथ नहीं है। अच्छा, देखिए मैंने इसीलिए कुछ चीज़ें पूछी, जैसे उनकी हाइजीन, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, सोना जागना भी ठीक है, खाने पीने में उन्होंने कहा मुझे ज़रा ज़ोर लगाना पड़ता है, जो कि अगेन फिर उनका इस्टेब्लिश्ड पैटर्न है। जी तो अगर तो कोई बाकी मसाइल नहीं हैं, जैसे मूड्स के मसाइल नहीं हैं, हाइजीन के मसाइल नहीं हैं, ताल्लुकात भी उन्होंने कहा ठीक हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो फिर अब जो करने का काम है ना वो माँ को खुद करना पड़ेगा, जिसमें उनको वो एक काम है जो असाइन करना पड़ेगा बच्चे को कि बेटा आप बिज़ी हैं, पढ़ भी रही हैं, स्टडीज़ भी डिफ़िकल्ट हैं, वी रियली अंडरस्टैंड, मगर ये है कि इस वीकेंड पे यू जस्ट हैव टू बी यू नो वर्क ऑन ऑल योर एक्स्ट्रा जो आपके हैं, जैसे टास्क हैं जिसमें कि आपकी कबर्ड भी है, आपका रूम भी है, और वो फिर आप उनको असाइन करें। जी असाइन करने के बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो उनसे सिर्फ फीडबैक लेना है। बिल्कुल सही। फिर आपने बार बार पोक नहीं करना, बार बार खुद से नहीं उठाना, हर चीज़ पे आपने बुरा भला नहीं कह देना, हर चीज़ पे आपने फिर उनके मूड को मैनेज कर, मतलब यूजली माएँ क्या करती हैं कि वो बुरा सा फीडबैक देती हैं, फ़ौरन ही गिल्टी होती हैं, फिर फ़ौरन वापस जाके उसको रिपेयर कर देती हैं, यानी चीज़ों को, कमरे को, टास्क को, साथ ही फिर कुछ एक्स्ट्रा करती हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा खाना दे दिया, मूड को खुश किया, तो उससे बच्चे ने क्या सीखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, यानी गिल्ट इंड्यूस करो और बात मुकम्मल करा लो, तो ये तो बड़ा अच्छा काम है। लेकिन जिम्मेदारी का एहसास दिलाना और फिर जिम्मेदार बनाना भी हमारे करने के काम है, जी और जिसमें आप ऑलरेडी मिसेज आमिर लेट हैं, ये कोई आज से 10 साल पहले करने का काम था, 12 साल पहले, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप ये असाइन कर सकती हैं, और इफ़ेक्टिवली यू जस्ट हैव टू बी इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कि बेटा यू आर वेरी प्रीटी, यू आर वेरी सेंसिबल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका रूम, आपका बेड, आपकी कबर्ड भी इसी तरीके से अच्छी पूरी सेट होगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और उसके बाद बस फिर आपके करने का काम सिर्फ यही है
کہ آپ اس پہ ان کو دوبارہ سے فیڈ بیک لیں 1 دن بعد 2 دن بعد. اور جب آپ نہیں کریں گی تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ چینج آنا شروع ہو جائے گا. پینک ہرگز نہ ہو, جی برا بھلا ہرگز نہ کہیں, تعلق ہرگز خراب نہ کریں, اچھی چیزوں پہ اپریشیٹ بھی کریں ان کو. اور جب آپ دیکھیں کہ اچھا یہ کام ہوا ہے تو اس پہ ذرا زیادہ اپریشیٹ کریں کہ میری ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ آپ یہ کام کریں گی, مجھے بہت اچھا لگا, اینڈ آئی لو یو سو مچ, آپ میری بہت کمپیٹنٹ بیٹی ہیں. تو آپ آہستہ آہستہ دیکھیے گا بالکل کہ یہ بھی بیہیویئر ان کے اندر اسٹیبلش ہو جائے گا. جی 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 بالکل, آپ نے بہت ہی زبردست بات کی, اور میری جو توجہ ہے وہ کامنٹس کی طرف بھی آئی. اس میں پرنس حمزہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ شو کو پذیرائی دے رہے ہیں, راجہ عابد ہمارے ساتھ ہیں, عاشر کرسٹوفر ہیں, جی رانا ابو بکر صاحب ہیں. جی آپ سب جو شو کو دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, آپ کا بےحد شکریہ. ہمارے ساتھ جب آپ شو دیکھتے ہیں اور آپ اس شو پر شامل ہیں تو اپنا نقطہ نظر بھی ضرور بتایا کریں. جیسے کہ اپنی بات سے مراد ہے کہ آپ کی اپنی ذاتی دلچسپیاں کیا ہیں. جی میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم تو اپنی دلچسپیاں, اپنے معمولات, اپنی روٹینز آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی آپ بھی ضرور بتائیے آپ کی ہابیز کیا ہیں. جی اور جب آپ اپنی ہابیز کے بارے میں, اپنی روٹینز کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس سے بھی ایک کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی چینجز. بعض اوقات ہمیں جن چیزوں کو ہم ہابیز سمجھ رہے ہوتے ہیں جی اس کو بھی کئی دفعہ ہمیں تھوڑا سا چینج کرنے کی, موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی تو ضرور اپنے بارے میں بھی آپ بتائیے گا کیا کیا مصروفیات رہتی ہیں, کیا دلچسپیاں ہیں. تو یہ میرے جو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. جی جی جہارا. جی بالکل, اس طرح محسن صاحب بہت سارے کمنٹس بھی ہیں. جی ماریم محسن صاحبہ کہہ رہی ہیں شو از ٹو گڈ. جی بہت شکریہ آپ کا. خواجہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کیپ اٹ اپ. رانا ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں, جیسے بھی آپ نے کچھ نام پڑھ بھی دیے تھے, جی اور سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شو بہت اچھا ہے. خاص طور پہ جو چیز بہت زیادہ لوگوں نے محسن صاحب ہمیں ساتھ بھی دیا ہمارا, وہ یہ کہ یس نیڈ آف ٹائم از پازیٹیوٹی. یہ ایسا ایک ضرورت ہے, وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم جتنا مثبت رہیں گے نا اتنے ہی معاملات احسن انجام پذیر ہو جائیں گے. اچھا, آپ کے پاس کمنٹس شاید میرے اور آپ کے کمنٹ ٹیلی نہیں ہو رہے. ہاؤ ٹو مینیج obsessive compulsive disorder, شہریار کا سوال آ گیا. جی تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا جہارا, کہ یہ جو او سی ڈی ہے جی جی اس کی مینجمنٹ کے بارے میں جو ان کا سوال ہے جو کافی اہم ہے. اچھا دیکھیں, جو obsessive compulsive disorder ہے نا, جیسے آپ کو پتہ, نام سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں obsessions بھی ہوتی ہیں اور compulsions بھی ہوتی ہیں. obsess ہوتا ہے یعنی پیشنٹ جو ہے بیسیکلی اٹس اے تھاٹ ڈس آرڈر, اور اٹس اے کلینکل ڈس آرڈر ایز ویل. سائکیٹرک ایشوز میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت کامن ہوتا ہے. کبھی کبھی جب ہم ملٹیپل ڈائگنوزز ہوتے ہیں تو اس میں سے 3 ڈائگنوزز ہیں تو اس میں زیادہ ریشو جو ہے اس میں او سی ڈی کا ہوتا ہے. ایون سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کے ساتھ بھی او سی ڈی جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ تھاٹ ڈس آرڈر ہے. تو سوچیں ہیں جو انسان کو کچھ ایکٹ کرنے پہ مجبور کرتی ہیں, یعنی کمپلشنس پہ, یعنی سوچ ہے آپ کو کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود مائی ہینڈس. اب یہ ایک سوچ ہے, تو سوچ جو ہے یہ سوچ پھر آپ کو مجبور کرتی ہے کہ بھائی میں نے ہاتھ دھونے ہیں. تو اٹ از نارمل, مطلب ایک سرٹن لیول تک نا محسن صاحب یہ بالکل نارمل ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ کو کچھ لگا تھا ٹیبل پہ, اینڈ یو جسٹ گو اینڈ واش اٹ, اور اس کے بعد پھر آپ کی جو سوچ ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور آپ بزی ہو جاتے ہیں. اچھا, اب جب ڈس آرڈر کی ہم بات کرتے ہیں, ڈسیبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو وہ وہی سوچ بار بار آپ کو تنگ کرتی ہے, اور جب آپ اس کو رائٹلی ایڈریس نہیں کرتے تو پھر وہ ایک سوچ نہیں, پھر بے تحاشا سوچیں ہیں جو آپ سے مختلف کام سر انجام دینے پہ مجبور کرتی ہیں آپ کو. جیسے ہاتھ بھی صاف نہیں ہے, ڈور بھی گندا ہے, مین گیٹ بھی لاک کھلا ہوا ہے, سم باڈیز کسی نے اب یہ کھانا بھی جو بنایا ہے تو یہ شاید یہ بھی کوئی پراپر کلین نہیں ہوگا, ہائیجینک نہیں ہوگا, یا میرا یہ جو کپڑے ہیں شاید یہ پراپرلی پریس نہیں ہیں, یا میں اچھا لگ نہیں رہا ہوں. اب او سی ڈی کی اگر مینیفیسٹیشن دیکھیں محسن صاحب تو یہ اتنی واسٹ ہے کہ ڈس آرڈر, کیونکہ آرڈر اور ڈس آرڈر میں ایک تھن لائن ہی تو ہے نا, ایک ڈگری کا فرق ہے نارمل ایب نارمل میں. تو اس کی مینیفیسٹیشن اتنی واسٹ ہے کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو ذرا سی بے چینی ہو مجھے کہ میرے موبائلس جو ہیں ٹیبل پہ وہ سیدھے نہیں رکھے ہوئے,
तो मैं बड़ी अहम बात करते करते भी इसको सीधा कर दूंगी, सही, मैं बात सही। करते करते मग को ऐसा करूंगी, सही। या मैं अब मुझे लगेगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हूँ कैमरे में, तो मैं मतलब आपके अंदर एंग्जाइटी जनरेट होती है, आप एजी होते हैं, आप बेचैन रहते हैं, आपको आप एट पीस नहीं होते, तसल्ली नहीं होती आपकी, जब तक आप उस सोच को पाए तकमील पे ना पहुंचा दें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की, तो उसके अंदर बेसिकली इंसान बहुत पेन में होता है। मैनेजमेंट की जो इन्होंने क्वेश्चन किया है, तो देखें इसकी मैनेजमेंट दो तरीके से है। पहली मैनेजमेंट इनिशियल स्टेज पे अगर आप माइल्ड लेवल पे हैं तो थेरेपी से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। यानी यू जस्ट हैव टू एड्रेस योर थॉट्स। आपने अपनी सोचों को बेसिकली 1 2 3 4 का जो एक हमारा फार्मूला है उस पर यू जस्ट हैव टू कन्फ्रंट इट। ये मेरी कमज़ोर सोच है, ये बीमार सोच है, मैंने इस पे काम नहीं करना, और बार बार से व्हेन यू स्टार्ट कन्फ्रंटिंग योर थॉट्स तो कमज़ोर पड़ जाती हैं। मगर अगर ये अब माइल्ड से मॉडरेट और फिर सवेयर आ गई है, जैसे कि हम पेशेंट्स को अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आते ही मोहसिन साहब तब हैं जब वो सवेरिटी पे होते हैं। कुछ लोग उसमें मॉडरेट या माइल्ड पर भी आ जाते हैं, जी, लेकिन जी। उनकी बहरहाल तादाद माइल्ड तादाद वालों की कम होती है। मॉडरेट वालों की उससे ज़रा ज़्यादा, हाँ। और स्वेयर वालों की यानी जब वो पेन से कोई ऑपरेट करते ऑप्शन हैं। नहीं रह जाता। जी। और उसके अंदर बड़ी बुरी शेप में भी होती हैं। जैसे मैंने लोगों को देखा है कि उनके हाथों की जो स्किन है वो डैमेज होती है, जी। या पैरों की, या नींद डिस्टर्ब होती है बुरे से। वो रिचुअल परफॉर्म अगर कर रही हैं तो कर रिचुअल परफॉर्म करने से ही वो नहीं सो पा रहे होते। जी। तो उसके अंदर जो है वो फिर मेडिसिन्स जी। जो इसकी फर्स्ट पे है वो दवाइयाँ, जब हम राइट मेडिसिन्स देते हैं जिससे पेशेंट जो थॉट ब्लॉकर्स होती हैं, और जब वो जो थॉट ब्लॉकर्स हैं जब उनसे उन सोचों को कुछ रिलीफ मिलता है पेशेंट को और वो रिसेप्टिव होता है, तो फिर थेरेपी से हम उसकी मदद करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो सारा मैनेज करना है थॉट्स को, जी पहचानना है, जी और पहचान कर फिर उसको राइट टाइम पर, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप राइट टाइम पर बिल्कुल अर्ली डायग्नोसिस पर ही डील करना शुरू करते हैं तो बड़ी आसानी से जी जी आप उस मसले को डील कर पाते हैं। असद अली साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया असद भाई। जावेद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं। रज़ा अहमद ख़ान जी जी भी हमारे साथ हैं। अच्छा जी और बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। गानिया समी ने भी कमेंट किया है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक हिंदी में भी आया है कमेंट, अच्छा, और अब मैं यही ओपन करने की कोशिश करी हूँ कि अगर ये ट्रांसलेशन हमें दे गूगल ट्रांसलेशन साथ ही ऑप्शन, तो मैं इसको भी पढ़ना चाहूँगी, जो कि वो लिखा हिंदी में हुआ है। अच्छा। और क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी सी जो हमारे कमेंट्स हैं ना, मेरे सामने वो नहीं है, अच्छा। वरना मेरा जो फ़ोन है आपको पता है वो सारी ज़बानें पढ़ता है। जी 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 मोहसिन साहब, फिर मैं अब आप मेरा ख्याल है कि इस कमेंट का मैं फिर शो के बाद ही जवाब देता हूँ। अच्छा हाँ, अब क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं जिसके अंदर पाक आर्मी जिंदाबाद, शाहीन जिंदाबाद, ऐसे वाले भी हैं। जी पाकिस्तानी शहीनों ने तुम्हें औकात याद दिला दी काइंड ऑफ कमेंट्स भी हैं। जी तो जी। उसके बाद फिर जो उनके जो जवाब है वो हिंदी में आया, तो मैं चाह रही थी कि उसकी ट्रांसलेशन अगर हो, लेकिन आपको भी अपीयर नहीं हो रहा मोहसिन साहब। मेरे पास अभी अपीयर नहीं हो। अच्छा, वो ये कह रही हैं अच्छा, शहरी अवान जिन्होंने भी ओसीडी का भी पूछा था ना, जी जी। उनका कमेंट है कि इतनी सिंप्लिसिटी के साथ गहरी बात करना हर किसी की बस की बात नहीं है। सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। हुमायूं साहब का भी कमेंट है, हुमायूं साहब का भी बहुत शुक्रिया। देखिए लोग कितनी तवज्जो के साथ देखते हैं। हाँ जी यानी बिल्कुल। आप ये देखें कि बिल्कुल रेलिवेंट, जैसे जी। जितने भी कमेंट्स या जितने भी लोगों ने बात की, या जैसे कॉल पर हमारे साथी थे जी तो उनकी बड़ी रेलिवेंट बात थी। जैसे अभी जिन मदर से हम बात कर रहे थे, जी अब मुझे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि अब जैसे उन्होंने कितने खुल के अपनी बेटी का मसला यहाँ डिस्कस हाँ किया। हाँ, आई रियली अप्रिशिएट हाँ, मोहसिन साहब। और असल में तो कोई उनको ऐसे कोई इसमें फील नहीं हो रहा था, कोई शेम नहीं फील हो रही थी। जी अच्छा, यही हम चाहते हैं कि आप अपने मसले को अगर खुलकर बताएं, जी और उन्हें पता था कि ये बात नश्र हो रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए ना, हमारा बेसिक पर्पस भी तो मोहसिन साहब यही है ना। जी खुशी होती है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो हम डेडिकेट करते हैं विलिंग वेज लाहौर स्टूडियो से ख़ास तौर पे अपने व्यूवर्स के लिए, तो पर्पज़ ही ये है कि जो मसला आपको बेचैन किए देता है जी और आपके दिमाग में रहता है, यानी आपकी सोचों में हर वक्त, तो आप उसे शेयर करें। जी। शेयरिंग इज़ बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि बेस्ट सोल्यूशन ऑफ एवरी बिल्कुल इशू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कमेंट इसके अलावा फरानाज ने भी किया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो
ख्वाजा साहब का कमेंट, ख्वाजा अब्दुल हक साहब का कमेंट हस्ब मामूल हौसला अफजाई वाला, बहुत शुक्रिया। राजा शाबान साहब हमारे साथ हैं, राजा साहब ने मुझे मैसेज किया, बहुत शुक्रिया राजा शाबान आपका। अच्छा, और शेरी अवान जो है ना, उन्होंने अब एक और लाइव में, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, कमेंट है, कह रही हैं कि वन मोर क्वेश्चन, अच्छा जी, ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप को किस तरह डैमेज करती है और कैसे बचा जा सकता है? यानी वो कह रही हैं कि ओवर थिंकिंग किसी भी ताल्लुक को कैसे डैमेज करती है। जी जी जी। अच्छा जी जी मोहसिन साहब, इस पे ओवर थिंकिंग जो है वो एक्चुअली आपको एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड किस्म का एक मैसेज देती है, क्योंकि आप उसी मैसेज को बार बार सुन रहे होते हैं। तो किसी ने आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में जी किसी ने कोई एक दफ़ा जब बात की है, जी तो बहुत मुमकिन है कि आप उसे 10 दफ़ा रिकॉल करें, जी 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 यानी उसे मैक्सिमाइज करके, बड़ा करके ये ओवर थिंकिंग हमारे सामने पेश करती है, जी जिससे हमें वो बात बहुत ही ज़्यादा उसकी गूंज सुनाई देती है, और हमें ये लगने लगता है कि ये तो वो बहुत ही हमारे ख़िलाफ़ हर वक्त वो ये बातें कर रहा है, जबकि उसने वो एक दफ़ा बात करके बाद औक़ात लोग अपनी मसरूफ़ियात में चले जाते हैं। बाद जी औक़ात उनका मकसद जो है वो आपको सिर्फ तंग करना ही होता है, डिस्ट्रैक्ट एग्जैक्टली करना होता है। बिल्कुल। अच्छा, ओवर थिंकिंग में मोहसिन साहब बहुत बहुत कुछ ऐसा भी सुनाई देता है जो होता नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल यानी सही। आपकी एजम्पशंस होती हैं, जी आप वही जो अभी हम बात कर रहे थे ना, या माजी होता है या मुस्तकबिल होता है। जी ओवर थिंकिंग में जी जी हाल नहीं होता, और ऐसा बहुत कुछ होता है जो होता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जब जब कुछ ऐसा होगा कि जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप अज्यूम कर रहे हैं जी और सोचे हैं जो बच्चे दे रही हैं, तो उसमें तो फिर कुछ भी, कोई भी ताल्लुक होगा तो वो ऑब्वियसली इफेक्ट तो होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी वजह से हम ओवर थिंकिंग को हम कहते हैं कि इट्स अ सीरियस इशू। इसको अगर आप सफ़र करें ओवर थिंकिंग से, तो आप मेडिटेशन के थ्रू उस पे काम कर सकते हैं, आप अपनी नींद पूरी करके कर सकते हैं, आप अपनी थॉट्स को, राइट थॉट्स को एड्रेस करके, रॉन्ग को कन्फ्रंट करके आप डील कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ज़रा ओवर थिंकिंग मेरे तमाम मसाइल की वजह है, तो आप किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त जब हम आपके साथ मुखातिब हैं, तो मैं ख़ास तौर पे आज के मैसेज का, आज के शो का जो क्रक्स है या मैसेज है, वो आपसे आपको याद दिला देना चाहता हूँ। और वो मैसेज ये है हमारी आज की सारी गुफ्तगू का, जी कि हमने फोकस रखना है उस पर जो कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर जो चीज़ है, जिस पर हम कंट्रोल रखते हैं, जिस पर हम इन्फ्लुएंस रखते हैं। मुल्की हालात में जिन इदारों ने इस मैटर को डील करना है, वो बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग अच्छा मैसेज, पहले अमन का मैसेज, और फिर जहाँ हमें लगा कि यहाँ मैसेज जो है वो उसकी लैंग्वेज वो वाली समझ नहीं आ रही, तो फिर दूसरी लैंग्वेज के साथ भी उन्होंने इदारों ने पैगाम दिया है। जी और ये भी मैं आपसे बताऊं कि हम और आप अगर तारीख़ पर नज़र डालें, तो दुनिया में अक़वाम के हालात में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, चलती जी रही हैं। गो कि हम इस खित्ते में इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे इस वक्त जो मसाइल हैं दोनों तरफ, जी इसके पीछे तो सरकारी जो वजूहात हैं, सियासी वजूहात हैं, जो कि भारत की तरफ से हमने देखा कि वहाँ चूँकि एक ख़ास किस्म का जो ग्रुप है, जी जी उसके अपने मफादात इससे जुड़े हुए हैं। चुनाचे इस तरह का जो बदअमनी की फ़िज़ा उन्होंने बनाई, जी जो कि हम बार बार अवॉइड करने की ही बात कर रहे थे। जी लेकिन जी फिर जब जंग मुसल्लत की गई, तो उस सूरत में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने दिफा तो करना ही था। जी जी अच्छा, अब इसमें हमारा असल दोनों मुल्कों का, बल्कि इसमें अगर आप बांग्लादेश को भी शामिल करें और इस सारे खित्ते को, तो यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जी जी यहाँ तालीम की कमी बहुत है, यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, यहाँ सेहत के मसाइल हैं। तो असल तो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो असलहे पर या इन चीज़ों पर ख़र्च करने की बजाय हमें इन मसाइल को हल करना है आपस में मिलजुल के। हम तो ये तवक्को करते हैं कि हम सारे आपस में एक ज़बान बोलने वाले आपस में ख़यालात साझे करें। जैसे कि हम देखते भी हैं, अवाम सब जगहों पे एक जैसे ख़यालात रखती है, अवाम के ख़यालात में तब्दीली नहीं है। जी जी ख़यालात जो है वो ख़ास कुछ ग्रुप है जो कि लीड कर रहे होते हैं, जिनका उसके पीछे कोई ना कोई मफाद होता है। जी जी बिल्कुल तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि इस मैसेज को भी सोशल मीडिया के थ्रू हम ज़रूर, अगर हम सोशल मीडिया पर जाना ही चाहते हैं, तो अपने अमन का, मोहब्बत का और पॉजिटिविटी का जो मैसेज है जी वो हम ज़रूर स्प्रेड करते रहें। जी और इसमें
دوسروں کو ہم خیال بنانے کی سرحد پار سے بھی میں توقع کرتا ہوں کہ وہاں بھی جتنے ہمارے آڈینس ہیں، میرے اپنے سوشل میڈیا فرینڈز میں بہت بڑی تعداد سرحد پار سے ہے، جی 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 تو ان سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا رول ادا کریں اور اس میں امن کی اس خطے کو جتنی ضرورت ہے اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. بے شک، بالکل محسن صاحب. اور میں ایک شعر بھی، آج آپ نے شعر و شاعری نہیں کی محسن صاحب؟ نہیں، میں نے شروع میں سنایا تھا بیزار ہے جو جذبہ حب الوطنی سے، ہاں وہ لوگ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے. واہ واہ واہ. تو میں نے کہا ایک شعر ذرا میں بھی عرض کروں. آپ فرمائیے، ارشاد کیجیے. ارشاد کروں میں. جی. شعر ہے جی کہ متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں. واہ. متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں. جی. گر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں. واہ واہ واہ. کیا خوبصورت ہے. تو ہماری جو سلامتی ہے وہ ہمارے وطن کے ساتھ ہے، اور وطن پاکستان ہمارا خوبصورت، یہ سلامت تا قیامت، یہ دعا ہے ہماری. اور محسن صاحب ایک یہی پہچان تھی اپنی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی. تو یہ جو پاکستان کے ساتھ سلامتی اور خیر والا رشتہ اور محبت کا رشتہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر بالکل کامل ہے ایمان میرا، اوپر رب ہے نیچے پاکستان میرا. سبحان اللہ. تو واہ میں نے کہا آپ کے شعر والا گلا بھی دور کر دیا. کیا بات ہے محسن صاحب، چھا گئے ہیں آپ. مطلب کہ شاہینوں کے بعد اگر چھائے ہیں تو وہ آپ. بہت شکریہ جہارا، بہت شکریہ ناظرین آپ کا. ہمارے ساتھ آپ رہے لیٹس ٹاک ود بلنگ ویز پر. آپ سے ملاقات ہمیشہ کی طرح بہت اچھی، بہت پازیٹیو. جو باتیں کی ہیں دوسروں سے شیئر کیجیے گا. اسی میسیج کو ہم نے پھیلانا ہے تاکہ ہم اپنی کارکردگی، اپنے کام، اپنے ایجنڈا سے ہٹے نہیں، بلکہ اس میں فوکسڈ ہو کے اپنے آپ کو بہترین انداز سے فنکشنل رکھیں اور اپنی زندگی کو بہترین انداز سے آگے بڑھائیں. خوش رہیے، آباد رہیے، سلامتی سے رہیے، خیر سے رہیے، عافیت سے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں. کسی ریومر، کسی پروپیگنڈا کا حصہ ہرگز بننے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا کام اسی کو سانچے، تو ہمارا جو کام ہے ہم وہی کام کریں گے، مگر دعا ضرور کریں گے اپنے ملک کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے. خوش رہیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سیٹرڈے کو دوپہر 1 بجے، جبکہ ولنگ ویز کا اگلا لائیو شو آج شام 7 بجے پریزنٹ ہوگا ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ. یو آسک فار اٹ. یو آسک فار اٹ ہمارا وہ شو ہے جو آپ ہر شام دیکھتے ہیں 7 بجے، اور یہ ہر روز کسی نہ کسی سینٹر سے، لاہور، کراچی، اسلام آباد سے پریزنٹ ہوتا ہے. تو آج کا شو ڈاکٹر صداقت علی کا معروف شو، بہت ہی پاپولر شو، جس کا آپ اور ہم سب بہت انتظار کرتے ہیں، آج شام پریزنٹ ہونے والا ہے 7 بجے. سو اسٹے ٹیونڈ رہیے گا ولنگ ویز کے ساتھ ساتھ، دیکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے شو پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.